Namaskar, Jai Shri Krishna all. Am I audible? Jai Shri Krishna, sir. Jai Shri Yes, Krishna. sir. Jai Shri Shri Krishna, sir. You are audible. Jai Shri Krishna. Yes. Right. Please switch on your camera. I request everyone to switch on your camera. Radhe Radhe to all. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Happy Radhe Rath Radhe, sir. to all. Jai Jagannath. Jai Jagannath. Jai Jagannath. Jai Jagannath. Right. So happy to see you all on this particular session. And today we are going to have the session on Masters in Vastu, which is very important for all of us to know on this festive season of Rath Yatra, where to keep the mandir, idol mandir in our house. So that is the topic. And before getting into the topic, let me say about our college, Sri Maharshi College of Vedic Astrology, the 25 years old Gurukula is now conducting the classes in various Vedic courses like astrology, Vastu Shastra, numerology, palmistry, and the tarot reading, and also on the different branches of astrology like KP astrology, Rigunandi Nadi, and the Lal Kitab. So these courses are conducted 100% in online with a proper syllabus, structured classes with the proper timetable, and all the students, those who are enrolling in the Vedic studies in our college, the live sessions are provided by the expert faculties who are already PhD holders in their respective subject. And most importantly, the recordings are provided of all the classes for better learning practices. And the system of college is working and functioning in such a way that all the students get the study materials after the enrollment, and the course fees doesn't have any hidden cost also, because we as a college, as an institution of Vedic courses, we feel that the knowledge must be transferred from generation to generation. That is the motive of all these activities and functioning of the college. And the courses are divided into 4 different levels in which any education background can pursue the courses right from the grassroots level, right from the basics. And the courses are starting from the diploma level. Then the next level of course is the post-graduating diploma, and then the master's program, and then the research program. So today we are having a demo session of Vastu Shastra department in the particular topic, which is already mentioned and shared to you all in the particular group. Right. And regarding the syllabus of different courses and this particular course, Masters in Vastu, you can connect with your relationship manager and get the details of the syllabus as well as the fee structure. Right. And we have Dr. Vinod Sharma ji on this particular session. Namaskar. 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 Happy to have you on this particular platform to enrich the participants of the day with the Vedic knowledge on the topic. And I welcome you to address the particular gathering today, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. May I start? Yes, sir. Yes. First of all, myself, Vinod Kumar Sharma. Okay, I'm an architect, interior designer, and Vastu consultant. I'm also working as an astrologer. Okay, since 2011, I'm doing practice in this particular field. Okay, and long journey, we can consider like very long experience in this field. Okay,
from like childhood we are actually connected this particular field, so that's why matlab, it is so much we can say that we are so much relate this particular field. Okay, now first of all I want to say that thank you so much Rudresh sir for this opportunity. uh, Now, there are so many students, they know about me. Okay, here. Uh, Today I'm taking a very small introduction related with Mandir. Okay, and before that, I want to explain you everything about the course. Okay, what we are going to cover in that particular course. Okay, uh, अभी स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि जो हमारा एमए मास्टर्स होगा उसमें क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे. ओके, तो इसके लिए काफ़ी स्टूडेंट तो जानते ही हैं. ठीक है, नाउ बट आई वांट कि जो नए ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, और जो नहीं जान रहे उन सभी को एक बार पूरा ब्रीफ कर दें तो इट इज़ अ फार बेटर. ठीक है ना. ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. सर प्लीज अलाउ मी. ओके जी. I request everyone, please on your video. Okay, so it is far important. Okay, so we all are connected. हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, इसी के लिए जनरली मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखें. ठीक है, नाउ ओके, गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए स्टार्ट करते हैं. ठीक, श्री विष्णु. ओके ओके, नाउ एमए टॉपिक्स क्या क्या आएंगे. ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर सेशन. इस सेशन में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी. जिन लोगों ने पीजीडीआईवी किया है या फिर जिन्होंने ऑलरेडी पीजीडीआईवी कर चुके हैं, ठीक है, दे नो अबाउट दैट. ओके, बेसिक तो उन्होंने ऑलरेडी कर रखा होता है. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ऑफ वास्तु. ठीक है, वास्तु क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग इन द डिटेल इन दिस पर्टिकुलर सेशन. इन द पीजीडीआईवी वी जनरली गो थ्रू, हमने एक बेसिक आइडियाज लिया था. ठीक है, वास्तु क्या है. ठीक है, यहाँ पर वी आर गोइंग विद द डिटेल एंड वी आर टेकिंग सम रेफरेंस फ्रॉम द ओल्ड टेक्स्ट. जो हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं उनके टेक्स्ट से हम कुछ रेफरेंस लेंगे और वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ठीक है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में कुछ चीजें थोड़ी आगे पीछे होती है. ठीक है, सो सभी का टेक्स्ट का हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है. Okay, now direction. I will try to explain you detail in the detail way. Direction. Okay, सूर्य सिद्धांत we are going to cover in this particular part also. ठीक है, क्या सिद्धांत है. 16 zones of वास्तु. वास्तु के 16 zones कौन कौन से हैं. We are also going to cover that particular part. जो चक्रा है, ठीक है, वास्तु चक्र मंडल, उसको we are going to consider. ठीक है, उसको देखेंगे. ठीक है, वास्तु पुरुष. वास्तु पुरुष क्या है. ठीक है, वास्तु चक्र एंड द मंडला, इसको डिटेल में वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, जोन्स स्टडी करेंगे, एवरीथिंग. ओके, 45 गॉड इन वास्तु. इन द प्रीवियस जो पीजीडीआईवी के स्टूडेंट्स होंगे दे नो अबाउट दैट कि हमने एक बेसिक आइडियाज लिया था डीटीज के बारे में. ओके, व्हाट दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट लाइक डीटीज. ओके, जिसमें वी आर कंसिडरिंग 35 डीटीज. ओके, नाउ 32 देवी देवताओं को हमने कंसीडर किया था. यहाँ पर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट वी आर गोइंग टू कंसीडर ऑल 45 डिटीज. ठीक है, सभी जो 45 देवता हैं उनके लक्षण प्लस उनको प्रॉपर तरीके से उस स्पेस को इनहेल करने के लिए उसको बहुत अच्छे से हील करने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं. ठीक है, देवताओं के लिए हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर. ठीक, ये सारी चीजें इसमें कवर होगी. इवन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि कौन से देवता जो हैं, ठीक है, कैसे प्रसन्न होते हैं. ठीक है, वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है,
तो रेमेडीज किस टाइप के वैदिक रेमेडीज हमको यूज करना चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ से आपको कुछ आइडियाज मिल जाएगा, ठीक है, जो एज पर द हमारे जो लिटरेचर टेक्स्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्लॉट, प्लॉट का सिलेक्शन, ओके, जो हमने पीजीडीआईबी में किया उससे एक एडवांस लेवल पे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि प्लॉट के किस प्रकार से सिलेक्शंस होते हैं, कैसे पंचकोश सिद्धांत काम करता है, ठीक है, उस चीज को भी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। एंगल्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, कौन कौन से एंगल्स कैसे होने चाहिए प्लॉट के, ठीक है, वो भी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। फिर एंट्रेंस एंड दियर इम्पैक्ट, ओके, in the previous we can say like a PGDIV we covered about like a basic ideas about the entrance, okay, but in this particular part we are going in the detail about the entrance के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक पूरा पूरा आइडिया आएगा कि उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है, प्लस एंट्रेंस बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए एंट्रेंस का प्लेस निर्धारित करना तो बहुत आसान है, आप प्लेस तो निर्धारित कर सकते हो, यू कैन यूज लाइक ए चक्रा मंडला, ओके, यू कैन फाइंड आउट कि ये प्लेस, ओके, बट कैसे एक एंट्रेंस होना चाहिए, एंट्रेंस आइडल एंट्रेंस कैसा होता है, आर यू अंडरस्टैंड, मतलब समझ रहे हैं ना कि क्या चीज है, आइडल एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, कैसे मटेरियल्स यूज होने चाहिए, किस टाइप का एंट्रेंस होना चाहिए, क्या क्या चीजों को ध्यान देना है, ओके। नाउ इन द डिटेल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, इसको एक पूरा वास्ट तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है, बिकॉज के मास्टर्स कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपको पूरा जो पर्दे में जो पीछे जो चीजें थी वो बाहर आ जानी चाहिए, ठीक है, तो उस तरीके से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे कार्य किया जाता है, काम कैसे किया जाता है एक्चुअल में, ठीक है, कौन कौन सी चीजों को हमको ध्यान रखना है जब भी हम एज ए वास्तु कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, तो एंट्रेंस के लिए कौन कौन सी कार्विंग्स आ गई, किस टाइप का पैटर्न आना चाहिए, कैसे टाइप के वुड का यूज करना चाहिए, किस टाइप के स्टोन का यूज करना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मटीरियल वाइज एज पर द वास्तु व्हाट टाइप ऑफ मटीरियल वी हैव टू चूज, ठीक है, कौन सा मटेरियल हम चूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें आपको एक आइडिया पूरा मिल जाता है, ठीक है, यू कैन नोट डाउन एवरीथिंग, ओके। नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट लाइक वास्तु शास्त्र एंड द फेंग शुई, ओके, काफी लोगों का पीजीडीआई में भी क्वेश्चन रहता था कि सर वास्तु शास्त्र और फेंग शुई में क्या चीजें डिफरेंट है, ठीक है, कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं, क्या उसमें चीजें आती है, ठीक, तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे वो रिलेट होता है एक दूसरे के साथ, कितना चेंजेस है, कितना डिफर होता है, क्या उसके कंडीशंस हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, उसका मोटिव एक ही है, ठीक है, बट कैसे वो चेंज हो जाता है, ठीक है, और हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो द वैदिक वास्तु और कैसे फेंग शुई इम्पैक्ट करता है, ठीक है, उस चीज को भी हम समझेंगे, ठीक है। नाउ ये चीज आती है, फिर वास्तुशास्त्र एंड आर्किटेक्ट, ठीक है। नाउ वास्तुशास्त्र और आर्किटेक्ट की जब हम बात करते हैं तो सिंपली एक चीज समझना है, एज ए सतपति, ठीक है, जैसे वी कैन से एज ए वास्तु कंसल्टेंट आपको कितना नॉलेज होना चाहिए चीजों का, क्या क्या चीजें रीड करना आना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स आपको पता होने चाहिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा ना हो जाए कि आप कुछ चीजें सजेस्ट कर रहे हो बट इट इज नॉट पॉसिबल, किसी घर में बना हुआ हो और वो पॉसिबल ही नहीं, इवन घर बन चुका है या बनने वाला है और यू आर गोइंग टू सजेस्ट दैट कि यू हैव टू डू दिस, ओके, आपको ये करना है, बट वो पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं है, तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, इवन आपको कोई भी ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए, उसमें जो चीजें मेंशन की है उनको समझना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है, एक वास्तु कंसल्टेंट, क्योंकि आप कितनी बार पूछने जाओगे किसी से, किसी आर्किटेक्ट से कितना टाइम पूछोगे, किसी सिविल वाले से कितना टाइम पूछोगे, ठीक है, अगेन एंड अगेन तो आपको काम करने ही वाला है, ठीक है, पढ़ने ही वाला है, तो आपको खुद से चीजें एनालिसिस करना, बेसिक आइडियाज आना चाहिए इसका, ऐसा ना हो कि आप आउट ऑफ सिलेबस
टेक्स्ट जाके किसी से कुछ पूछ रहे हो, देन आफ्टर पता चलता है कि आपको तो पता ही नहीं उस चीज का, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पूरा का पूरा रीड करना, डॉक्यूमेंट्स रीड करना, ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। नाउ इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एरिया वास्तु, इट इज अ वेरी यूनिक, ओके। नाउ पहले हमने एक बेसिक आइडिया लिया होगा, ठीक है। नाउ बट यहाँ पर हम प्रोजेक्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अगर आपको करने हो तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। समटाइम वी आर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, दे वांट टू डू लाइक अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। तो किस टाइप से आप कमर्शियल प्रोजेक्ट कर सकते हो, वास्तु में कैसे एनालिसिस किया जाता है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को, इवन कितना आपके पास लिमिट है, ओके। यू आर नॉट ए लिमिटलेस, आप लिमिटलेस काम नहीं कर सकते। यहाँ पे एक बाउंड्रीज आ जाती है, बाउंडेशंस आता है इंडस्ट्री के अंदर। इफ समवन इज सेइंग कि सपोज कि मुझे केमिकल प्लांट लगाना है, एक एग्जांपल, ठीक है, तो बॉयलर तो हमेशा सेंटर में आ जाता है, ओके, बॉयलर सेंटर में आ जाता है, ठीक है। तो कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे काम करना है, क्योंकि देखो हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर भी उसकी हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू कैन नॉट डिस्टर्ब द हायरार्की, आप उसकी हायरार्की को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हायरार्की को डिस्टर्ब करोगे तो उसका प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका मशीनरी डिस्टर्ब हो जाएगा। वो आपके अकॉर्डिंग मशीनरी का प्लांटेशन प्लानिंग नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट आप कौन कौन सी चीजें सजेस्ट कर सकते हो, कैसे एनालिसिस कर सकते हो उन चीजों का, ठीक है, और कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर, वो सारी चीजें कमर्शियल वास्तु में हम देखेंगे, ठीक है। नाउ टाउनशिप, suppose someone want to plan like a town, or you can say like a block. Suppose A B C D E F G block है, ठीक है, बिल्डिंग्स ब्लॉक्स है, ओके। यू वांट टू प्लान, आप प्लान करना चाहते हो, किसी आर्किटेक्ट ने, बिल्डर ने आपको कहा कि आप प्लान करके दीजिए एज पर द वास्तु, ठीक है। तो आप कैसे सजेस्ट करेंगे, कहाँ पे आपका गार्डन आना चाहिए, कहाँ पे हॉस्पिटल या क्लिनिक आना चाहिए, कहाँ पे होम थिएटर्स आना चाहिए, क्लब हाउस कहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज यूनिक थिंग्स, एक प्रॉपर तरीके से एक टाउन या फिर एक एरिया को कैसे आप सेटअप करोगे, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरी तरीके से सिखाता है कि कैसे आप काम कर सकते हो, ठीक है, वास्तु के अंदर किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो छोटी छोटी चीजों को, ठीक है, यहाँ पर आपको हेल्प करता है, ठीक है ना। एक और चीज जिसके अंदर वी कैन से दैट, जैसे कुछ चीजें हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गई, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कैसे मेल खाता है, ठीक है, कैसे उसको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, उसको समझेंगे, ठीक है। बैलेंस करेंगे, 5 एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है, वो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। कॉस्मिक साइंस, अच्छा ये जो चीज है ना, इसको समझिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वास्तु कंसल्टेंट। एक वास्तु कंसल्टेंट को क्या नियम फॉलो करने चाहिए, और उस कॉस्मिक साइंस जो है, ठीक है, उसको कैसे यूज किया जा सकता है एक वास्तु के अंदर, ठीक है। वो एनर्जी क्या है, उस एनर्जी के अपने रोल्स क्या हैं, ठीक है, मतलब यू कैन से लाइक एनर्जी, ठीक है, स्पेस एनर्जी, यू कैन से लाइक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ठीक है ना, उसको कैसे उपयोग किया जा सकता है, कैसे उसको काम में लिया जा सकता है, ठीक है, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है मुहूर्त, ओके सर, कई बार ऐसा होता है कि सम गाइज आर सेइंग कि आप ही मुहूर्त निकाल दीजिए, ठीक है, आप बता दीजिए कैसे होगा, ठीक है। सो दे डोंट वांट टू गो, मतलब वो पंडित के पास नहीं जाना चाहते, ठीक है, दे वांट कि मतलब आपको आना चाहिए, ठीक है, आपको पता होगा। तो समटाइम ऐसा होता है कि वास्तु कंसल्टेंट प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट दे डोंट नो कि कैसे मुहूर्त निकालूं, कैसे देखूं, कौन सा टाइम है, ठीक है, कौन सा शुभ रहेगा अशुभ रहेगा, दे डोंट नो, ठीक है, किस टाइम में कौन से साइड का घर बनाना चाहिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे हर डायरेक्शन का घर हर टाइम नहीं बना सकते, ठीक है, उसका एक टाइम पीरियड होता है पर्टिकुलर, ठीक है, उसके नक्षत्रों और उसके जो सीजन्स होते हैं उन सीजन्स के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है। तो वो सब चीजें हमको पता होना चाहिए, ओके ना। अच्छा
वास्तु का जब निर्माण किया जाता है तो इसमें एक पद्धति होती है, शेषनाग, ठीक है, और सर्प, यू कैन से दैट, ओके। सर्प और सर्प का मुख और पूंछ, ठीक है। तो उसको कहाँ होना चाहिए, कौन से नक्षत्र में वो होता है, ठीक है, किस टाइम पे किस जगह पे हो, तो नींव कहाँ रखनी चाहिए, ठीक है। तो उसका भी अपना एक प्रारूप है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। प्लेसमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारी नींव में, धरती में, ठीक है, रखने चाहिए जब प्लॉट आप नींव की पूजा करते हैं या फिर आप कंस्ट्रक्शन करने वाले, तो कैसे सिंबल्स आते हैं, कैसी चीजें रखी जाती है। आपकी शिला, शिला मीन्स आपका जो ब्रिक होता है, जो ये पत्थर हो गया, ठीक है, उसके ऊपर कैसे चिन्हों का आकार होना चाहिए, ठीक है, जो कार्विंग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ colors and the modern vastu, it is a very important because today I know about that a lot of the customers, they don't want this type of colors, like you can say like yellow, green, red, they don't like that type of colors, and वो चाहते भी नहीं है कि ऐसे डायरेक्ट कलर्स आप लगा दें उनके घर में, ठीक है। दे आर गोइंग टू अवॉइड दैट, मतलब वो कहेंगे यार ये नहीं अच्छा लगेगा, आप रहने दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा, कुछ और तरीका बताइए, ठीक है। सो हाउ कुड यू अंडरस्टैंड द कलर, कलर को कितना डीपली आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, उसकी जो डिटेल्स है, ठीक है, उसको कितना डीप में अंडरस्टैंड कर पाए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखो, एक चीज था, हमारे पास कुछ लिमिट्स थी पहले, ठीक है, बट आज हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है। सेम थिंग वी आर यूजिंग लाइक सम सॉफ्टवेयर फॉर द वर्किंग द वास्तु, ठीक है। वास्तु के लिए हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, यू नो अबाउट दैट, ठीक है। हैंड हैंड से काम करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो टुडे वी हैव सॉफ्टवेयर्स ना, हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ड्राफ्टिंग, एनालिसिस, परफेक्ट एंगल्स, एवरीथिंग वी कैन फाइंड आउट, ठीक है, हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से कलर्स को भी, ठीक है, मॉडर्न वे में देखना पड़ता है। हाँ, ये जरूरी है, उसके पिगमेंटेशंस कैसे हैं, टिन शेड्स कैसे हैं, ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो शेड्स कैसे डेवलप कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो किस टाइप का क्लास में आता है वो समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि इफ यू आर गोइंग टू चूज लाइक अ रेड, और रेड के क्लास में आना चाहिए बट वो तो चला गया किसी और के पिंक के क्लास में, ठीक है। सो ये चीजें हमको समझना होगा, ठीक है, तो वो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द डिटेल, ठीक है। नाउ after that we are understand some like a plants, okay। Here कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सपोज जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, जब बेसिक आइडिया वी हैव लाइक हमारे पास बेसिक आइडिया होता है, बट समटाइम वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड सम प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली द प्लांट का जो वी कैन से लाइक रूट, sometime you can say the branch, sometime you can say like a wood, okay, the bark मतलब उसकी छाल, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये अपने आप में भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, ठीक है ना, ये समझिएगा। और प्लांट्स नॉट लाइक दैट कि जस्ट यू आर ग्रोइंग समथिंग, ओके, ये ऐसा भी है वास्तु में कि कौन सी चीज को कहाँ रखा जाए तो उत्तम रिजल्ट दे देती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके यहाँ पर पानी की टंकी है, ठीक है, उस पानी की टंकी में वी कैन से दैट कि स्मेल आता है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। नाउ एज पर द वास्तु सम गाइस आर सेइंग कि ये तो इसमें प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ रेमेडी यू हैव टू यूज, ठीक है, सिंपल, यू हैव टू यूज लाइक अ जामुन ब्रांच, जामुन का एक ब्रांच ले लो, उसको तोड़ लो, ठीक है, उसको डाल दो पानी में, ठीक है, सिंपल। now it is a शुद्ध also and it is also giving you the best, मतलब you can say that कि आपको नहाने के लिए भी, ठीक है, वो पानी बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है ना, उससे आपकी जो ऑरा होती है, ओवरऑल चीजें होती है, ठीक है, शुद्ध होती है, ठीक है, लाइक दिस। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे वी कैन से लाइक आयुर्वेद इन द वास्तु एंड द प्लांट्स इन द वास्तु, ठीक है। तो ये चीजें भी अपने आप में जुड़ती है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे, ओके। एनवायरमेंट एंड इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक है, जो आउटर एनवायरमेंट है उसका इम्पैक्ट एंड द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ योर रेसिडेंस, ठीक है,
जरूरी नहीं कि आपने रूम तो बहुत अच्छा बनाया, ठीक है, एज पर द वास्तु है, ठीक है रूम, बट उस रूम में प्रॉपर तरीके से वैसा एनवायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। एनवायरमेंट यू कैन अंडरस्टैंड लाइक ओपनिंग्स हो गई, एयर सर्कुलेशन हो गया, वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो एज पर अरेंजमेंट, एज पर द वास्तु, ठीक है, अरेंजमेंट वास्तु के अकॉर्डिंग था, ठीक है, पर एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है वहां पे, जो वैसा हार्मनी बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा। तो क्या करना चाहिए, उसका इंटरनल एनवायरमेंट अच्छा है या नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नाउ द एनर्जी आई टोल्ड यू अबाउट दैट, ठीक है। आर्किटेक्चर ड्राइंग ऑलरेडी, ठीक है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, ओके, टाउन, फिर टेम्पल आर्किटेक्चर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। सिंपल इन द डिटेल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ हियर वी आर आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि जैसे प्रतिमा विज्ञान हो गया, ठीक है, तो उसको कैसे देखते हैं, ठीक है, कैसे कंसीडर किया जाता है, एक वास्तु कंसल्टेंट क्या क्या चीजों का ध्यान रखे। सपोज यू वांट टू वर्क फॉर द लाइक अ टेम्पल, आप टेम्पल के लिए काम करना चाहते हो, तो कौन कौन सी बारीकियां आपको ध्यान में रखनी है, मूर्ति कला क्या है, डिजाइन्स क्या है, स्कल्पचर्स क्या है, कौन से स्कल्पचर्स आते हैं पहले, फिर कौन से स्कल्पचर्स किए जाते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक टेम्पल जब आप डेवलप करते हो तो टेम्पल की हायरार्की है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया आपने, नो, उसका अपना एक पूरा का पूरा शुद्ध रूप है, उस रूप को समझना बहुत जरूरी है। तो उस रूप को समझ के फिर उसके अकॉर्डिंग वहां पे सिलेक्शंस, ठीक है, डिजाइन पैटर्न्स कैसे होने चाहिए, एक वास्तु कंसल्टेंट को पता होना चाहिए। इवन द मूर्ति, ओके, जो मूर्ति होता है, जो एक्चुअल आइडल है, उस आइडल की हाइट भी मंदिर की हाइट वहां से डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो बहुत ही डिटेल में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। साइंटिफिक बेसिक्स ऑफ वास्तु, वास्तु के साइंटिफिक बेसिक्स क्या हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि विदाउट बेस यू कैन नॉट से दैट कि इट इज अ परफेक्ट, ओके। someone is going to ask you, okay, you are talking about the mythology, okay, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे का रीजन क्या था ये यूज करने का, ओके। तो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू लाइक फिजिक्स, ओके, फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसे रिसर्च इस टॉपिक पे होते हैं, और ऐसा ही सेम टाइप ऑफ टॉपिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द वास्तु, हम यही चीजों को वास्तु में कंसीडर करते हैं। समवेयर यू कैन से दैट कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, रोम में जो वर्क हुआ टाउन प्लानिंग, इट इज द सेम 9 like a 3 by 3 mandala and the 9 by 9 mandala, okay, they also used this particular technique, okay। now यहाँ पर भी जब अगर आप बहुत सारी चीजों को देखते हो, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हमारे यहाँ होता था। तो बट थोड़ा वी कैन से वी आर, हम लोग अलग तरीके से उसको देखते हैं, ठीक है, हमारा अलग टेक्निक है देखने का। दे आर टॉकिंग अबाउट देयर ग्रिड पैटर्न, वो अपनी ग्रिड पैटर्न की बात करते हैं वहां पर, ठीक है। आवर ग्रिड पैटर्न इज somehow different, ठीक है, थोड़ा अलग है, बट इट इज so much नियर बाय, बहुत ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर हमको टेक्निक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कौन सी टेक्निक से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे साइंटिफिक वैल्यूज जो हैं, ठीक है, वो हमको पुट करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ विदाउट साइंटिफिक एविडेंस यू कैन नॉट सजेस्ट दैट, समवन इज गोइंग टू आस्क यू कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, क्या रीजन था इसके पीछे। तो यू हैव टू नॉलेज, मतलब आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि हाँ इसके पीछे ये रीजन था, बिकॉज यहाँ पर ये पैटर्न होता है इसलिए इसका ये रीजन है, ठीक है। वी हैव लिटिल बिट, बट भले छोटा हमको नॉलेज हो, कोई जरूरी नहीं कि वी हैव लाइक अ ब्रॉड नॉलेज, ठीक है, बट हमको पता होना जरूरी है, ठीक है ना। नाउ नाउ स्टडी ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स को स्टडी करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ कि कौन सा पैटर्न, कौन सी कला, कौन सा आर्ट, कौन सा कल्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये वास्तु में भी एक रोल प्ले करता है।
ये एक हार्मनी बनाता है, एक तरह का रिदम बनाता है, ठीक है, उस घर के लिए, उस प्लेस के लिए। तो ये सारी चीजें भी हमें पता होना चाहिए। यंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। You can say that कि if you want to balance the area, if you want to balance the space, उस स्पेस को आप बैलेंस करना चाहते हो, उस एरिया को आप बैलेंस करना चाहते हो, यू डोंट हैव लाइक, आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं है करने के लिए। लाइक इफ यू वांट टू लिव इन द फ्लैट, फ्लैट में रहते हो, पॉसिबिलिटीज नहीं है बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत लिमिटेड चीज होती है, ठीक है। सम गाइज आर सेइंग कि फ्लैट का तो वास्तु ही नहीं होता, ठीक है, ऐसे कैसे रहते तो है ना, कैसे बोल सकते वास्तु नहीं होता? सब, जिस जगह पे आप निवास करते हो उसका सबका वास्तु होता है, ठीक है, तो उसका भी वास्तु होता है। और इसी तरीके से वहां पर क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जहां पर आपको यंत्रों की जरूरत पड़ती है, आपको हेवी रेमेडीज की जरूरत पड़ती है। समवेयर यू कैन से कि आप उस एरिया को नहीं तोड़ सकते, डिमोलिश नहीं कर सकते, तो वहां पर यंत्रों की जरूरत पड़ती है। इवन आपने स्टार्ट किया, आपका बेस जब स्टार्ट किया, तो वहां पर भी यू नीड यंत्रास, ठीक है, वहां पर भी आपको यंत्र की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग से लेके एंड तक भी जरूरत पड़ती है। समवेयर यू कैन से कि आपको स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन कर दिया है, अब प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर भी यंत्र की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर आप यंत्र को प्लेस कर सकते हो, ठीक है। नाउ रेमेडीज एंड वास्तु, बहुत सारी रेमेडीज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। पहले भी हमने कई रेमेडीज देखी है। नाउ it is a unique remedies we are going to use, like a Vedic remedies and the some traditional remedies और the modern remedies, ठीक है। तो ये सभी का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे कि कहाँ पर और किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। Now, last but not least, residential and the commercial project. We are doing the proper residential full-fledged project, ठीक है, commercial full-fledged project करेंगे, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया है कि कैसे काम किया जाता है और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो आपका, ठीक है। नाउ सो दिस इज द सिलेबस, ओके, जो हम कवर करने वाले हैं। ओवरऑल मैंने सारे लगभग पॉइंट्स कवर किए हैं। समवेयर लाइक यू कैन से द मॉड्यूल नंबर 3 इज गोइंग टू मेंशन सम पार्ट एंड द मॉड्यूल नंबर 11 इज द सेम पार्ट बट इट इज इन द डिटेल, ओके। तो वो दोनों को मैंने एक ही जगह पे रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हमने 12 मॉड्यूल्स हैं और 12 मॉड्यूल्स के सिलेबस में ये चीजें हमारी कवर होने वाली है। क्लियर? नाउ अब हम जा रहे हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। आइडियल मंदिर इन हाउस, घर के अंदर एक आइडियल मंदिर कैसा होना चाहिए? अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार माइंड में क्लिक होता है कि सर मंदिर घर के अंदर किस टाइप का बनाए, मैं तो बहुत लैविश बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू क्रिएट वेरी बिग मंदिर, ठीक है। मेरा बहुत ज्यादा भक्ति में मन है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ठीक। परंतु शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र अपने आप में क्या चीज उल्लेख करते हैं, ठीक है। इवन देवालय कैसा होना चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम पर्टिकुलरली घर के मंदिर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक। इसमें क्या, जस्ट अगर मैं कहूँ रेसिडेंशियल का मंदिर, ठीक है, घर में मंदिर जो हम बनाते हैं रेसिडेंशियल मंदिर, अच्छा, इसमें और जो हमारा बाहर जो मंदिर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? इट इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। समझ लीजिएगा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, छोटा डिफरेंस नहीं होता, इट इज अ वेरी बिग डिफरेंस, ओके। नाउ वहां पे जो मूर्ति होती है वो जागृत अवस्था में होती है, समझिएगा, क्या होती है? जागृत अवस्था में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मूर्ति होती है सर, क्या वो जागृत नहीं होती? अच्छा, इट इज वी कैन से दैट कि इट इज वन टाइप ऑफ लाइक स्पिरिचुअली यू आर गोइंग टू कनेक्ट। आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए आपको एक स्पेस की नीड होती है, एक जगह की नीड होती है और एक आइडल की नीड होती है। जैसे मूर्ति पूजा
सम गाइज आर नॉट गोइंग टू बिलीव इन दैट, ओके, बट हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी चीजों में छूट दी है, ठीक। चारवाक भी हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर बहुत लिबरल है हम। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि इसने इस चीज को माना तो मैं इसको नहीं मानने का, ठीक है, ऐसा कोई थंब रूल वैसा नहीं किया एकदम, ठीक है। हम बहुत ज्यादा लिबरल हैं। अच्छा, कोई वेद में मानता है, तो कोई मूर्ति पूजा में मानता है, कोई पुराण में मानता है, ठीक है। तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति अनुभव कर सकता है और उस चीज को डिलीवर भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, रेसिडेंस मंदिर को अगर जब हम बात करते हैं तो टिपिकली ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि एक घर में बनाया गया छोटा मंदिर है, स्मॉल स्पेस है, ठीक है। जहां पर क्या करते हैं हम जनरली, हम अपनी आत्मा से या फिर हम अपने ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन कई बार ये रेज हो जाता है कि सर इस मंदिर को बनाने के पीछे रीजन क्या रहा, क्या पहले से मंदिर बनते थे हमारे घरों के अंदर। कई बार क्वेश्चन रेज हो जाता है कि सर हमारे घर में तो मेरे परदादा के घर में मंदिर नहीं था सर, ठीक है। सर मेरे गांव में घर था पर वहां मंदिर तो ऐसा हमने सचेस नहीं देखा, हाँ फोटो होती थी या हम दिया जलाते थे, वो प्रक्रिया थी, बट स्पेसिफिक टेम्पल नहीं था जो आज के टाइम पर होता है या मंदिर बनाते हैं, ना। ये जनरली किस लिए है, हम एक फोकल पॉइंट क्रिएट करते हैं। फोकल पॉइंट इन द साइंस वी आर यूजिंग द टर्म ऑफ द फोकल पॉइंट, ओके। फोकल पॉइंट मींस वेयर यू वांट टू फोकस, आप जहां पर फोकस कर सकते हो, एकाग्र होके, एकाग्र चित्त होकर जिस चीज को आप देख सकते हो, होता है ना, जैसे ध्यान अवस्था, ठीक है। आपने जैसे मैंने आपको कई स्टूडेंट्स पढ़े होंगे, जैसे पीजीडीआईबी अगर जिन्होंने किया होगा तो दे नो अबाउट दैट, युग हमने पढ़े थे, ठीक है। तो युग में हमने क्या क्या चीजें देखा, हमने युग देखा तो युग में हमने कंसिडर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ठीक है। तो हमने उन सब के युग के एक पैटर्न को अंडरस्टैंड किया था, याद हो तो, ठीक। उसी प्रकार से अगर मैं उस पैटर्न को और आज के कलयुग के पैटर्न को मर्ज कर दूं, ठीक है, और उस मर्ज करके फिर मैं एक मंदिर का निर्माण करूं, ठीक है, जो घर पे एक मंदिर बने, ठीक है। तो मंदिर कैसा हो, एक आइडल होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा पोजीशन मतलब स्पेस अच्छा होना चाहिए, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। कैसा, मेरे योगिक क्रिया मतलब मैं एक ऐसी साधना में बैठूं जिससे मैं एक एकाग्र हो सकूं, ठीक है, और मैं अपने ईश्वर में लीन हो सकूं, ठीक है, और उस तक मैं अपने आप को फोकस कर सकूं, ठीक है ना। ध्यान करते हैं तो हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, अपने अंदर ही झांक रहे होते हैं, ठीक है, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस कर रहे होते हैं। उसी प्रकार से उसी ऊर्जा को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सामने हमारे पास जो आइडल है उस आइडल में एकाग्र होना बहुत जरूरी हो जाता है, उसके अंदर एकाग्र होना होता है हमको। तो उसके अंदर एकाग्र होने के लिए आपको क्या चाहिए, तो एक टर्म वी आर गोइंग टू यूज, इट इज अ फोकल पॉइंट, ओके। फोकल पॉइंट मतलब वह मूर्ति या वह आइडल या वी कैन से दैट पर्टिकुलर आइडल, ठीक है, जो भी है, ठीक है, उसमें एकाग्रचित होकर उसमें ध्यान में मग्न होना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, हम रिचुअल्स करते हैं, हम भोग लगाते हैं, हम हर चीज के साथ में इमोशनली, ठीक है, कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी के यहाँ लड्डू गोपाल होंगे तो दे आर वेरी मतलब वो इमोशनली पूरी तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, उस डिटी के साथ में। तो लाइक दिस कि मतलब आप कैसे उसके साथ एकाग्र हो सको, एक चित्त हो सको, ठीक है, कनेक्शंस अपने बिल्ड कर सको, ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस कर सको। तो इसको कहते हैं कि एक ऐसा स्पेस बनाना घर में जहां पर आप सभी चीजों को भूलकर उस ईश्वरमय हो जाए, ठीक है। तो इस स्पेस को वी कैन से लाइक मंदिर, इसको हम मंदिर कह सकते हैं, ठीक है। तो मन में झांकना, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है, इस मन में हम पूरी तरीके से झांक सके, ठीक है, तो उसके लिए
अच्छा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का वर्ड जनरली हम ऐसा कह सकते हैं कि हम किसी डीटी का वर्शिप करते हैं, ठीक है। कोई ग्रंथ का करता है, कोई भगवान का करता है, कोई मूर्ति का करता है, कोई कोई एक सिंबॉलिक मतलब एक किसी चिन्ह का करते हैं, ठीक है। तो जो भी है, ठीक है, जो भी चीज है उसको हम क्या करें, प्रॉपर तरीके से उस डीटी का, ठीक है, उस मंदिर में जो मूर्ति है या जो आकार है, वो आकार कितना परफेक्ट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एक प्रॉपर रूप होना चाहिए, उसका रूप का भी अपना एक प्रपोर्शंस होना चाहिए, ठीक है। तो वो एज पर द प्रपोर्शंस वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो डीटी आइडल है, आइडली है, मतलब परफेक्ट है, ठीक है ना। तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैसे हम इस चीज को जब हम मास्टर्स करेंगे तब उस टाइम पे मैं जब टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है, उस चीज को, प्रतिमा विज्ञान को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको, उस पार्ट को। तो आपको पता चल जाएगा कि डीटी के प्रॉपर जो भाव भंगिमाएं होती है, जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, वो अपने आप में ही बहुत ही यूनिक होने चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट कि जो आपके द्वार पे डीटी हैं वैसे ही आपके अंदर डीटी होंगी, नहीं। इट इज अ डिफरेंट द्वार, डीटी डिफरेंट, ओके। द्वार पे जो द्वारपाल है या यक्ष गंधर्व या फिर यमुना गंगा, ठीक है, जो भी देवियां हैं उनका अपना भाव अलग है। फिर जैसे जैसे आप अंदर जाते हो तो वैसे वैसे आपके जो इष्ट देव हैं या जिस देवता की आप पूजा करते हो, वो देवता की भाव भंगिमाएं कैसी होनी चाहिए, वो आइडल कैसा होना चाहिए, उसके हाथ में चिन्ह कैसे होने चाहिए, उसका आभूषण के चिन्ह कैसे होने चाहिए, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं एक डीटी के लिए, एक देवता के लिए, ठीक है ना। तो ये जनरली रेसिडेंस में भी हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमारे जो डीटी हैं वो डीटी किस प्रकार के हैं, वो देवता किस प्रकार के हैं। ऐसा तो नहीं कि जो हमने देवता मार्केट से परचेज कर लिया, ठीक है, और इट इज नॉट अ आइडल, वो प्रॉपर है ही नहीं। अच्छा, प्रॉपर क्यों जरूरत है सर, प्रॉपर की आवश्यकता क्या है, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कई बार ऐसे क्वेश्चन हो जाता है कि सर प्रॉपर की क्या आवश्यकता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक, या स्पेसिफिक है हमारे यहाँ पे तो शास्त्रों में, पर प्रॉपर क्यों आवश्यक है। देखो, कोई भी चीज है ना, वो एज पर यूनिवर्स के लॉ के अकॉर्डिंग है ना, तब उसको हम परफेक्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आगे कैसे है, ठीक है। आगे जब हम और पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्स का लॉ क्या है, ठीक है। और हम जो है, ठीक है, हम कैसे उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इट इज अ साइंस, टोटली साइंस है। और हमारे पूर्वजों ने शायद उसको पहले डिपिक्ट कर लिया था, उनको पता ही चल गया था पहले, ठीक है ना। तो उसको कैसे आइडली यू कैन से दैट इट इज अ परफेक्ट, है ना। तो ये बहुत आवश्यक होता है। आप किसको कहते हैं कि ये तो आइडल है, चलो कोई इंसान है वो बहुत लंबा हो जाए, ठीक है, तो इट इज अ परफेक्ट और नॉट परफेक्ट। समवन इज सेइंग कि परफेक्ट है ना सर, नो, वी कैन नॉट से परफेक्ट, क्योंकि यूनिवर्स का नियम क्या कहता है, यूनिवर्स का नियम क्या कहता है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन सबके लिए है। तो उसी प्रकार से देवता को जब देखते हैं आप, तो देवता के अपने रूल्स रेगुलेशंस है, उनकी भाव भंगिमाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो उस देवता का नाक नक्श, ठीक है, उसके लिप्स, उसके नोज, उसकी आईज, आईब्रोज कैसी हैं, ठीक है। आपने कहां पर मंदिर बनाया, सपोज यू आर डेवलपिंग इन द द्रविडियन आर्किटेक्चर, आप द्रविडियन स्टाइल में बना रहे हो, ठीक है। सो इट इज लाइक यू कैन से लाइक अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो अमरावती के पैटर्न में अगर आप उस चीज को बना रहे हो तो उसका भाव भंगिमाएं अलग होगी। इट इज लाइक यू कैन से लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू विजिट लाइक a महाराष्ट्र, तो इट इज अ डिटी इज अ डिफरेंट, वहां से आपकी डिटीज का रूप रंग सब बदल जाता है। द सेम प्रोसेस व्हेन यू आर विजिट लाइक अ मथुरा, वृंदावन, जयपुर, like Madhya Pradesh, ठीक है, it's a totally different, the deity is a different, okay, when you are like a कर्क रेखा की इधर नीचे चले जाओ
तो भगवान बदल रहे हैं, ठीक है, भगवान का रूप रंग सब बदल रहा है। और कर्क रेखा के ऊपर चले जाओ तो क्या होता है, भगवान का रूप रंग बदल रहा है। तो आइडल, मटेरियल, एवरीथिंग इज अ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और कैसे वो एक दूसरे के साथ, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि देखो हमें उसके साथ एक चित्त होना है, तो एक चित्त होने के लिए हमारा उसका मेल तो होना चाहिए, उस एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से भी मेल होना चाहिए। ऊर्जा बहुत जरूरी होती है, ऊर्जा को समझना बहुत आवश्यक है। वो ऊर्जा जो है वो एक चित एक साथ में वहां पर फ्लो होनी चाहिए। अब वो कैसे आइडल में फ्लो होगी, अच्छा एक और चीज होती है, आइडल का मटेरियल, कैसा मटेरियल है उस आइडल का, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस भी वहां पर अप्लाई होती है। जस्ट ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया और दे दिया, ऐसा नहीं चलता, आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं बनाया जा सकता और कुछ भी नहीं उसको कंसीडर किया जा सकता। इसके नियम हैं, वो नियम आइडली यूनिवर्सल लॉ है, उसके अकॉर्डिंग ही बन रहा है सब, यूं ही कुछ नहीं बनता ना। सो ये सारी चीजों को समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। जब भी मंदिर में हम लोग डीटी को स्थापित करते हैं या डीटी को, भगवान को देखते हैं, इसी प्रकार से रेसिडेंशियल मंदिर में भी भगवान की अपनी एक प्रतिमा होती है, उस प्रतिमा का अपना एक आइडल रूप होता है, उस रूप में हम एकाग्र चित्त होते हैं, ठीक है। वो एक सिंबॉलिक, यू कैन से दैट कि मैं तो योगी हूं तो मुझे आवश्यकता, या यू आर योगी, बट सब योगी नहीं होते ना घर में। तो सबको अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए एक ऐसी आइडल की आवश्यकता होती है जो परफेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह, स्वरूप, ठीक है, सिंबल सब अपने आप में अपने रोल प्ले करते हैं ना। बेसिक आइडिया लेते हैं, ठीक है, मंदिर का। हम लोग रेसिडेंशियल मंदिर के ही ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल अदर टेम्पल्स, ठीक है। Now, basic ideas for the public temple, we are going to see like Nagara, Dravidian and Vasara style of temples, ठीक है। Now, ये common type के temples है जो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। Now, very important part, घर में जो मंदिर बनाते हैं, क्या हमको ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए? अगर मैं नॉर्थ इंडिया में घर बना रहा हूं तो नागरा स्टाइल को ध्यान रखूं या फिर मैं द्रविडियन पैटर्न में बनूं? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर नागरा स्टाइल को अपनाना उत्तम माना जाता है। अगर आप नॉर्थ में बना रहे हो तो नागरा स्टाइल को कंसीडर करो। अच्छा, नागरा स्टाइल में अपने चिन्ह हैं, स्वरूप हैं, उनको अपनाना आवश्यक होता है। और द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल होते हैं उनके अपने स्वरूप चिन्ह हैं, ठीक है, तो उनको अपनाना भी आवश्यक होता है, ठीक है। अच्छा, एक बेसिक आइडिया आता है कि सर पहले क्या रेसिडेंस में घर होते थे? नहीं, देखो ये फैक्ट है। इट इज एज पर द लाइक वी कैन से लाइक एक्सकेवेशन जो हुआ, ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आफ्टर दैट मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा एंड द अदर एरियाज जो हमको रूइंस मिले, ठीक है, जो हमको चीजें मिली, ठीक है, उन चीजों से ये तो एक फिक्स हमको पता चलता है कि हम घरों में मंदिर सामान्य रूप से नहीं रखा करते थे। घर में मंदिर का प्रचलन क्यों हुआ? प्रचलन का रीजन, उसके पीछे रीजन होता है। देखो, सोसाइटी इज वेरी प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सोसाइटी जब इवॉल्व होती है, डेवलप होती है, तो अपने आप में कुछ चीजें लेके आती है। पहला वी कैन से दैट कि व्यक्ति व्यक्ति जो होता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। रिस्ट्रिक्शंस कैसा? यू आर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ठीक है, यू आर अ शूद्र, तो तुम मंदिर में नहीं जा सकते। ओके, आपने क्या किया? रिस्ट्रिक्शन लगाया। रिस्ट्रिक्शन लगाया तो क्या हुआ? वो मंदिर नहीं जा सका। अच्छा, आफ्टर सम टाइम मुगल्स भारत में आए तो जजिया कर देना पड़ता था आपको जाना हो तो। और द वी कैन से दैट कि वहां पे भी डोमिनेंस बढ़ गया, ठीक है। नाउ अब क्या करें? तो जनरली वी कैन से आफ्टर 11th century, इट इज अ कॉमनली वी आर सीइंग इन द residence
11वीं सेंचुरी के बाद कॉमनली ये देखा गया, रेसिडेंस में स्पेशली मंदिर बनाए जाने लगे। पहले पूजा की जाती थी, ऐसा नहीं कि पूजा तो होती ही नहीं थी, पूजा होती थी। दिया जलाने की प्रथा थी, दिया जलाया जाता था, पितरों को भोग लगाया जाता था, देवताओं को भोग लगाया जाता था, ठीक है। धूप किया जाता था, काउडक का यूज किया जाता था, ठीक है। ये एक प्रक्रिया थी अलग से, ठीक है। परंतु बट स्पेशली पूरा अच्छा सा टेम्पल बना के वहां पूजा करने की परंपरा नहीं थी। परंपरा मंदिर बाहर हुआ करते, जैसे पब्लिक मंदिर होते हैं ना, वैसे मंदिर बाहर होता है, वहीं गैदरिंग होता था, वहीं सब लोग जाते थे, ठीक है। बट ये सारी सिचुएशंस आने के बाद यू डोंट हैव लाइक, मतलब आपके पास कुछ चीजें नहीं बची, आप फ्रीडम नहीं था आपके पास, ठीक है। सो क्या करते, इफ समवन इज अ विडो, ठीक है, तो क्या करें उनको बचाने के लिए, क्या करते, तो क्या किया। अब समाज भी अपने आप में उतना शक्तिशाली नहीं था, बाहर से आक्रमण करने वाले लोग आ गए, तो क्या करें। तो वहां पर क्या किया, हम आपको घर में बना के देंगे। It is a very unique example you can see like a Mira temple in Chittor fort, ठीक है। तो it is a very common you can see, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो अपने उस फोर्ट में ही या पैलेस में या महलों में या यू कैन से हवेली में मंदिर बनाने का प्रथम प्रचलन बहुत बढ़ गया। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं पूजा कीजिए। बाहर पता नहीं कौन आएगा कौन जाएगा, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो दिस इज द वी कैन से। एंड सेकंड थिंग लाइक शूद्रस, ओके, हमको उधर मंदिर में प्रवेश नहीं है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम घर पे ही पूजा कर लेते हैं, ओके। ना आपको पूजा करनी है, आपको अपना नियम फॉलो करना है, तो उसके लिए देखो टुडे वी कैन से दैट कि लोग इतने सोचते क्यों नहीं थे पहले, क्या उनके पास नॉलेज नहीं था। देखो नॉलेज होना, ठीक है, और उसको फिर डिलीवर करना धीरे धीरे कम हो गया था। तो क्या हुआ, समाज अपने आप में संकुचित हो गया, और क्या हुआ, रूढ़िवादी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो उसके वजह से इवन यू कैन सी इन लाइक वाराणसी, अभी जो कॉरिडोर बना उसमें क्या हुआ, इट इज सो मेनी ह्यूज टेम्पल्स फाइंड आउट, बहुत सारे मंदिर मिले अभी। कैसे मिले, घर के अंदर छुपा लिया था। क्यों छुपा लिया, पहले आक्रमणकर्ताओं के डर से छुपा लिया, फिर उसके बाद लालच बढ़ गया तो उसको छुपा के रख लिया, जमीन का लालच बढ़ गया लोगों को, तो छुपा के रखा, बताया नहीं क्या टेम्पल है। इवन इट इज यू कैन से लाइक 500 years old टेम्पल, लाइक ऐसे ऐसे टेम्पल्स मिले, 800 years old टेम्पल ऑल्सो, ठीक है। इतने पुराने टेम्पल्स मिले हैं, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम था, बाहरी आक्रमण करता आ रहे थे, छुपा लिया टेम्पल को, पूरा कवर कर लिया ना। तो ये कॉमन फैक्टर रहा है, ठीक है, घर में मंदिर की स्थापना करने के पीछे, ठीक है। तो ये एक बेसिक उसका हमको हिस्ट्री में एक छोटा सा चीज हमको उदाहरण मिलता है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर घर में अगर हम मंदिर बनाना चाहते हैं तो हम कैसा घर में आइडियली मंदिर बनाएं, ठीक है। क्वेश्चन ये आ जाता है कहाँ बनाएं, कहाँ पर होना चाहिए। कॉमन मटेरियल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। लाइक स्टोन, यू कैन यूज द स्टोन, वुड, ओके, यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हो, ठीक है, स्टोन यूज कर सकते हो, वुड का यूज किया जा सकता है, ठीक है। नाउ हियर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सम टाइप ऑफ स्टोन्स आर आल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्यू मैंने खाली यहाँ पे अभी दो ही लिए, ठीक है, बट यू कैन कंसीडर लाइक अ लॉट ऑफ स्टोन्स आर देयर, बहुत सारे स्टोन्स यूज होते हैं, ठीक है, लाइक सैंडस्टोन, ठीक है, फिर देन आफ्टर इज अ मार्बल इज देयर, ठीक है। तो ये बेसिक स्टोन्स है जो यूज किए जाते हैं मंदिर को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे अभी आप राम मंदिर देखेंगे तो इट इज लाइक धौलपुर स्टोन, ठीक है, तो वो यूज किया गया है वहां पर, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे, जैसे मार्बल है, ठीक है, मार्बल का यूज होता है, ओके, राम मंदिर बनाने के लिए। तो उसी तरीके से रेसिडेंस में भी अगर हम मंदिर बनाते हैं तो मंदिर किस चीज का बनना चाहिए। अच्छा, समवन इज सेइंग सर इट इज अ वेरी कॉस्टली, ये तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। इट इज नॉट सो मच, ओके। आइडियली इफ यू वांट टू डेवलप लाइक अ स्मॉल टेम्पल,
in your home, आप घर में एक छोटा सा मंदिर बनाना चाहते हैं, you can use like a marble. It is also cheap comparatively when you are going to idol मंदिर बनाने का तरीका अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे सस्ता मार्बल का ही पड़ता है, ठीक है, और ये स्टोन का ही पड़ता है, बिकॉज ऑफ कि इफ यू आर गोइंग टू यूज लाइक अ वुड ना, तो वुड का टेक्निक, इट इज अ वेरी यूनिक टेक्निक यू हैव टू यूज टू डेवलप द मंदिर इन रेसिडेंस स्पेस। रेसिडेंस स्पेस में जब मंदिर बनाया जाता है उसका आइडली जो टेक्निक है इट इज अ वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है। तो कंपेरेटिवली दैट यू कैन गो विद द स्टोन, आप स्टोन के साथ जा सकते हो। स्टोन में वी हैव टू ऑल्सो लाइक देयर आर द सो मेनी वेराइटीज आर देयर, वहां पे वेराइटीज है, लाइक विच टाइप्स ऑफ स्टोन आई हैव टू यूज, कैसा स्टोन यूज करना है, सिलेक्शन ऑफ द स्टोन, वो आगे जब हम मास्टर्स करेंगे तब मैं आपको कुछ आइडियल स्टोन्स वगैरह बताऊंगा, कैसे लेना चाहिए, कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा अवॉइड करना है, ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने अगर देखा इट इज अ मार्बल्स लाइक मंदिर ले लो, ठीक है, नो नो ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो देखना पड़ता है कि आपका ये जो मार्बल का मंदिर बना है इट इज आइडियली परफेक्ट और नॉट, it has some proportions are there, ठीक है। Now also very important, the proportions when you are going to follow, after that you have to also see the material, ठीक है, वो मटेरियल को भी ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आफ्टर दैट यू कैन से लाइक इनले, कार्विंग, कैसा पैटर्न किया है, ओके, व्हाट टाइप ऑफ लाइक टूल दे आर गोइंग टू यूज, ओके, कैसा उसमें जॉइनिंग किया हुआ है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो भी बहुत अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी लाइक अ सैंडस्टोन और अदर स्टोन्स, ठीक। अच्छा, वुड में जब हम बात करें तो वी आर गोइंग टू सी सम लाइक मटेरियल्स, ओके, कैसा मटेरियल, वी कैन से लाइक टीक वुड, रोज वुड, ओक वुड, ये ऐसे वुड्स को हमको यूज करना होता है, ठीक है। नाउ सो वुड का अपना एक पैटर्न है, वुड का अपना एक लाइफ है, इवन वुड में कैसा वुड को सिलेक्ट करना है आइडल मंदिर के लिए, ठीक है, वो भी एक अपने आप में यूनिक चीज है, ठीक है। तो उसको हम वो एक बहुत वास्ट पार्ट है, इफ व्हेन आई एम गोइंग टू टेक लाइक ओनली द वुड टॉपिक, ठीक है, तो खाली मंदिर का लकड़ी कैसा होना चाहिए तो एक पूरा पूरा सेशन ले लेगा, ठीक है। तो इट इज अ वेरी यूनिक थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या होना चाहिए, उसमें नोट्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कैसे टाइप के नोट्स हो सकते हैं, इवन उसके ग्रेन्स कैसे हैं, ठीक है, ग्रेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, द पैटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कलर एंड द टेक्सचर, ठीक है, तो उसका कलर और द टेक्सचर वो अपने आप में क्या रोल प्ले करता है, द जॉइनरी पैटर्न, उसका जॉइनरिंग का दिस इज द ब्लॉक टेक्निक, ठीक है, आइडियली वी कैन से लाइक अ ब्लॉक टेक्निक जिससे मंदिर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेलिंग का यूज नहीं होता, ध्यान रखना। आप वुड का मंदिर बनाते हो, द प्लाईवुड, वी हैव टू अवॉइड द प्लाईवुड, ठीक है, जैसे मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, प्लाईवुड यू डोंट हैव टू यूज लाइक प्लाईवुड, एमडीएफ, दोस टाइप ऑफ मटेरियल, इट इज अ मैन मेड, इट इज नॉट अ आइडियली नेचुरल मटेरियल, ये आइडियली नेचुरल मटेरियल नहीं है। आप मंदिर में आपने सोचा मैं तो मंदिर में बैठा हूँ पूजा कर रहा हूँ, प्लाईवुड का मंदिर बना हुआ है, ओके, मेरा तो एमडीएफ का मंदिर बना हुआ है, आपने वहां दिया जलाया, ठीक है, बहुत अच्छा दिया जलाया, धूप किया, अच्छा किया, ओके, आप वहां पे मस्त बैठे हैं, ठीक है, दरवाजा वरवाजा थोड़ा ऐसे खोला है, आराम से बैठे हैं मंदिर में, दिया जलाया, अच्छा घी का दिया जलाया, ओके, आपको पता चला आपको तो प्रॉब्लम हो गया, ब्रीदिंग का इश्यू आ गया, आपको पता चला आपको तो लंग्स का प्रॉब्लम आ गया, सर मैं तो अपना 2 घंटे 3 घंटे टाइम देता हूँ भगवान के सामने, मेरे को ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ गया, क्योंकि यूरिया फेलामेटा टाइप का केमिकल होता है उसके अंदर, it is going to reduce, the chemical is going to reduce when you are going to provide like a heat something, समझिए उस चीज को, it is in the like we can say like in the America it is some rules and the regulations are there, आप इतना ही यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, इट इज अ बैन, हमारे यहाँ तो सब चलता है, ठीक है, वहां पे बैन हो जाता है, नहीं चलता, they are using like a very unique like we can say like a wood maple they are going to use,
ठीक है, वो मैपल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। दे आर गोइंग विद द नेचुरल थिंग्स ऑल्सो। प्लाईवुड यूज करते हैं बट उसका एक रेशियो है कि इतना ही होना चाहिए। हमारे यहाँ तो दे धनाधन दिन चल रहा है सब, ठीक है, तो उससे फिर प्रॉब्लम हो जाए। इवन इफ यू हैव ए सम ब्रीदिंग इश्यूज, आपको अगर सांस का प्रॉब्लम है, ठीक है, यू हैव अस्थमा, ओके, तो यू शुड ट्राई टू अवॉइड द मैंगो वुड, आपको उसको अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक। तो सम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा वुड लेना है, कौन सा लेना। यू कैन नॉट यूज द पाइन, चीड़ का जो लकड़ी होता है पाइन, वी कैन नॉट यूज टू डेवलप द मंदिर। इट इज द ऑयल कंटेंट इज सो मच, उसके अंदर ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कभी आप उसको देखना, ठीक है, इट इज ऑल्सो लाइक वेरी लाइट वेट, ठीक है। तो क्या होता है उस पे अगर आपने कोई वजन रख दिया, कुछ ऐसी चीजें कर दी, तो प्रॉब्लम हो जाता है। इवन लाइक फायर भी जल्दी ले लेता है, फायर पकड़ लेता है, ठीक है। तो आइडल मंदिर के लिए प्रॉपर वुड का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। वुड का सिलेक्शन, देखो मंदिर छोटा हो चलेगा, पर आइडल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, गलत नहीं बनाना होता। छोटा बनाओ, आपका बजट छोटा है, छोटा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आइडल मंदिर बनाने का, ठीक है ना। अवॉइड क्या क्या करना है, सपोज पूजा, जनरली वी कहते हैं पूजा रूम अकॉर्डिंग टू द वास्तु, ठीक है, कैसा होना चाहिए। स्टोर रूम में नहीं बनाना है, ओके, स्टोर रूम अवॉइड इन द स्टोर रूम। बेडरूम में नहीं बनाना है, अवॉइड इन द बेडरूम। बेसमेंट में नहीं बनाना होता, ओके। नाउ फर्स्ट और अबोव फ्लोर्स, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर हो गया, ठीक है, ओके। समवन इज सेइंग सर मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, ओके, फ्लैट में इट इज योर फ्लोर इज लाइक, वो आपका फ्लोर आपका ही गिना जाता है। बट जैसे ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसका बंगलो है, दे हैव टू कंसीडर कि आपका जहां से आपका किचन, आपका बेडरूम लिविंग रूम स्टार्ट हुआ, वहीं पर आपका प्रॉपर मंदिर उसी फ्लोर पे होना चाहिए, ओके। नाउ आफ्टर दैट अबो और बिलो द टॉयलेट वो अवॉइड करना है, और किचन के भी ऊपर और नीचे नहीं बनाना होता, ओके। स्टेयरकेस के नीचे नहीं बनाना जैसा इस फोटो में बताया है, ठीक है। मल्टीपल देवता नहीं रखने होते, सबको ले आए, भगवान बुद्ध को भी ले आए, ईसा मसीह को भी ले आए, इधर से सब सभी देवताओं को लाके वहीं पे एक जगह विराजमान कर दिया, सर्वधर्म समभाव, ठीक है। नहीं, आप जिस आइडल को मानते हो, जिस डीटी को, जिस देवता को मानते हो, उन्हीं को वहां स्थापित करें, ठीक है। बाकी सबकी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये चीज भी खास ध्यान रखिएगा। मंदिर बनाते समय और क्या चीजें ध्यान रखनी, हैंग नहीं करना होता मंदिर को। जैसे आप राइट साइड में जो इमेज देखेंगे, वो क्या हो रहा है, आपका मंदिर हैंग हो रहा है, तो आपको मंदिर क्या नहीं करना, हैंग नहीं करना। सेम अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का इमेज देखते हो, सर इट इज अ परफेक्ट ना, नहीं, आपका ऊपर पिरामिडल टाइप का शेप नहीं होना चाहिए घर के मंदिर में, ध्वजा नहीं होनी चाहिए घर के मंदिर में। ध्यान रखिएगा, घर के मंदिर में ध्वजा पिरामिडल शेप नहीं होता है, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं होता है, ठीक है, उसको हम और डिटेल में फिर करेंगे कि उसका क्या क्या रीजंस है, क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है, पर इतना ध्यान रखिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर फिर कलश नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कलश रख देते हैं ना ऊपर, नहीं रख सकते, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। घर के मंदिर में ये सब चीजें नहीं होती, घर का मंदिर सिंपल, ठीक है, अच्छा सा मंदिर, ठीक है ना। नीचे होलो स्पेस नहीं होना चाहिए, आपने एक ड्रॉवर बनाया उसके ऊपर मंदिर रख दिया, जैसे ये ड्रॉवर है और नीचे क्या है, पूरा होलो स्पेस है, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ नहीं कनेक्टेड है, तो ऐसा मंदिर आपका नहीं होना चाहिए। आइडल मंदिर आपका वुड का बना हो, प्रॉपर एक ही लकड़ी का, जिसमें रोज वुड हो, टीक वुड हो, मैंगो वुड हो, ठीक है,
ऐसा कोई वुड हो, ठीक है, यू कैन यूज लाइक मैपल हो सकता है, ओक हो सकता है, ऐसे लकड़ी का बना हुआ मंदिर आपको उपयोग में लेना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में मार्बल स्टोन से बना हुआ मंदिर आप ले सकते हैं, ठीक है, ये भी आइडल मंदिर है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। प्लेसमेंट, मंदिर को कहाँ पर प्लेस करना चाहिए। आइडियली मंदिर को प्लेस करने के लिए वास्तुमंडल में, वास्तुमंडल जब हम पदविन्यास करते हैं, जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है, उस पदविन्यास में हम क्या देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट पोजीशन होती है ईशान में, नॉर्थ ईस्ट में, जो आपको फर्स्ट पोजीशन अभी दिखाई दे रही, उस जगह पर भगवान को हम विराजित कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, ठीक है, और मंदिर को स्थापित कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन वी कैन प्रिफर, इट इज द ईस्ट डायरेक्शन, प्रॉपर ईस्ट डायरेक्शन में भी हम मंदिर को स्थापित कर सकते हैं। और थर्ड वी हैव ए पोजीशन, इट इज द नॉर्थ पोजीशन, जहां पर भी हम मंदिर को स्थापित किया जा सकता है। मतलब फर्स्ट तो वी हैव ए नो चॉइस, अगर हमें फर्स्ट मिल रहा है तो हमारे पास दूसरा देखना ही नहीं फिर, ठीक है, ये तो आपको कुछ नहीं मिलता तब वी कैन कंसीडर लाइक अ सेकंड और द थर्ड ऑप्शन, वी कैन गो विद इट, ठीक है। अगर हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है तो हमको फर्स्ट के साथ ही जाना चाहिए, ठीक। नाउ तो फर्स्ट ऑप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा हमारा आइडल या फिर हमारा जो मूर्ति है वो ऐसी पोजीशन में हो जो परफेक्टली नॉर्थ ईस्ट पे आता हो, परफेक्टली ईस्ट पे आता हो और परफेक्टली नॉर्थ पे आता हो, ठीक है। नाउ तो दिस इज द पूजा, ठीक है, पूजा जो मंदिर हम स्थापित करते हैं तो कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, वो चीज को हमने देखा। सर प्लीज। Yes, Professor. It was a like very detailed explanation on how to like maintain the temple in a home, idol mandir in a home. और आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ समझा दिया. इट इज़ अ वेरी लाइक डिटेल्ड सेशन. और बहुत अच्छा लगा आपके इंफॉर्मेशन से, बहुत कुछ जानने को मिला. और also I have like shared the details of this particular batch. जो हमारा बैच जो भी मास्टर्स इन वास्तु का जो एक स्टार्ट होने वाला है 18 जुलाई को प्लान किया हमने. एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे 9 p.m. to 10:30 p.m. And for more details on enrollment and on the syllabus, kindly connect with your relationship manager or the course coordinator. Right? Yes, Professor. So we'll take the questions now. यस सर। जी प्रतीक्षा जी, please unmute yourself. यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन रिगार्डिंग कोर्स के था। जैसे सर ने बताया कि हम टोटल 45 जो देवता फील्ड है उसको तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट आ रहा है कि आप क्या 64 देवता फील्ड पे काम करते हैं या फिर 81 देवता फील्ड पे काम करते हैं, तो क्या वो भी हम कवर करेंगे? कैन आई? Yes, yes, Professor, please. हाँ, देखिए वास्तु पुरुष मंडला है, ठीक है, जो पदविन्यास है उसमें 45 देवता ही विराजमान होते हैं, ठीक है। हाँ, 21 जैसे मंडला जो बनाने का सिद्धांत है उसमें 81 पद मंडला, 64 पद मंडला, मंडला में सिद्धांत है मंडला बनाने का, मतलब जो ग्रेडिंग किया जाता है ग्रेडिंग के पैटर्न्स हैं, पर देवता 45 देवी देवता विराजमान होते हैं, ठीक है, वास्तु पुरुष में। और सर एक अभी एक नया कंसेप्ट आ रखा है जिसको लोग महावास्तु बोल रहे हैं, तो सर वो महावास्तु क्या है और क्या होता है ये एग्जैक्टली? महावास्तु क्या अलग से होता है? क्या हम उस चीज को भी इसमें समझेंगे? क्योंकि वो एक कुछ डिफरेंट कंसेप्ट है जो मतलब अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो महावास्तु आपको इजिली वहाँ प्रेजेंट मिलेगा। Yes. वन थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन यू, एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। देखिए जो वास्तु है, ठीक है, वास्तु तो जैसे इफ यू वांट टू लाइक टेक एडमिशन इन समवेयर, आपने कहीं पे एडमिशन ले लिया इन द सब्जेक्ट ऑफ लाइक फिजिक्स, ओके, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी इन द इंडिया समवेयर, यू आर गोइंग टू स्टडी इन द अमेरिका, ठीक है, फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं बोल दूंगा मैं इंडिया में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे आगे लग गया इंडिया। आप बोल रहे हो अमेरिका में पढ़ रहा हूँ, तो आपके आगे लग गया अमेरिका, ठीक है।
पढ़ तो फिजिक्स ही रहे हैं। अच्छा, आप एटॉमिक में रिसर्च कर रहे हैं, मैं बोल दूं मैं इंडियन साइंटिस्ट हूँ, आप बोल दे मैं अमेरिकन साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, कोई बोल दे मैं ईरानियन हूँ, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी बोल दे, ठीक है, कर रहा तो एटॉमिक पे ही रिसर्च, ठीक है। नाउ सिंपली इट इज अ सिंपल द नेम दे आर गोइंग टू यूज, इट इज अ नेम ओनली, दे आर यूजिंग लाइक अ नेम। जैसे मैं बोलूं विश्वकर्मा प्रकाश, इट इज लाइक अ आइडल बुक, जो अपने आप में वास्तुशास्त्र का एक आइडल बुक है, ठीक है। तो उसको कोई बोलते विश्वकर्मा प्रकाश वास्तु, ठीक है, तो इट इज नॉट गोइंग टू से दैट कि मतलब वो अलग हो गया। इट इज अ सिंपल, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो पैटर्न होता है वास्तु का, वो सिद्धांत तो सेम ही रहने वाला है। नेम आप, अपना नाम आप अलग तरीके से लिखोगे, मैं अपना नाम अलग तरीके से लिखूंगा, बस लिखने का तरीका अलग अलग। जी सर। सर और उसके अलावा जो कि अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, एनर्जी स्कैनर और ये सब चीजें, तो क्या ये सब सारा कोर्स पे इंक्लूड रहेगा? देखिए एनर्जी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स वी आर गोइंग टू लाइक अंडरस्टैंड, कुछ बेसिक आइडियाज तो हम देते हैं, ठीक है, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइक वास्तु, वो वैसे प्रॉपर वास्तु का जैसे पार्ट होता है वैसे नहीं होता, इट इज लाइक एनर्जी हीलर्स जो होता है ना, वो उनका पार्ट हो जाता है वहां पर, ये अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी समझिएगा, यहाँ पर देखो दो तरीका है, एक होता है हम वास्तुशास्त्र में जो जो चीजें यूज करते हैं, एनर्जी को कैसे समझना है, एनर्जी को कैसे हील किया जाता है, कौन कौन से टूल्स यूज किया जाता है, वो तो अपना एक आइडिया है, ठीक है, वो सारा चीज तो आ जाता है। पर अब आपने बोल दिया कि मेरे को तो हीलर की तरह सब कुछ आना चाहिए, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वास्तु, वो पूरी तरीके से वास्तु का पार्ट नहीं होता। सर एक्चुअली क्या है, कुछ लोग जो है ये वास्तु का पार्ट बना करके उसको सेल आउट कर रहे हैं, और वो ऑल्सो वो कंटेंट है उसमें, ठीक है, कि लेकर एंटीना और ये स्कैनर और पेंडुलम, ईच एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा सा इसलिए लगता है कि मुझे भी आना चाहिए, वो एक फैक्टर आ जाता है, बस ये है मैटर। Maybe they are going to like some guys are, कुछ लोग यूज कर सकते हैं नो डाउट, ठीक है, बट इट इज जी नॉट आइडियली पार्ट ऑफ द वास्तु, वो आइडियली वास्तु का उतना पार्ट नहीं है, तो ये चीज को भी हमको समझना आवश्यक है, क्योंकि बेचने के लिए आप चीज बेच सकते हो, ठीक है, नो डाउट, पर वो इट इज नॉट लाइक इजी टू लाइक वी कैन से देखिए एकदम से कुछ चीजें वो करवा दी जाए और ये बड़ा बना दिया जाए, इट इज नॉट, मैं उसको नहीं कंसिडर कर सकता कि इट इज अ परफेक्ट। तो सर हम प्लॉट का एनर्जी कैसे चेक करेंगे फिर, अगर हम कोई प्लॉट सिलेक्शन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में प्लॉट की एनर्जी कैसे चेक करेंगे फिर सर? पहले के टाइम पे हमारे पूर्वज प्लॉट की एनर्जी कैसे चेक करते थे, दे डोंट हैव लाइक दिस टाइप ऑफ टूल्स, उनके पास तो ऐसे टूल्स नहीं थे, जी। तो क्या सिद्धांत वो यूज करते होंगे, कभी आपने किसी से ऐसा पूछा? नाउ सिंपली वी आर गोइंग टू यूज लाइक अ सिद्धांत, ठीक है, शल्य क्रिया, ठीक है, शल्य क्रिया इट इज अ सिद्धांत, दे आर नॉट गोइंग टू टीच यू, वो कोई टीच नहीं करता, क्योंकि इट इज लाइक यू कैन से दैट कि जब आप किसी के पास जाते हो, सम गाइज आर सेइंग दैट, ओके, मैं जैसे ये चीज बताता हूँ आपको, आप किसी के पास गए, उसने कहा कि आप अपने घर का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए, ओके, तो यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर प्लॉट एंड एवरीथिंग, आप बता देते हो, वो कहाँ बैठा है, सपोज मैं बैठा हूँ मुंबई में, ठीक है, अच्छा आप मेरे को वहां से बता रहे हो, आपके घर का खाली विवरण दे रहे हो, ओके, आफ्टर विवरण सम गाइज आर सेइंग दैट कि ओके, आप एक काम कीजिए, इस जगह पे जाकर यहाँ पे खुदाई कीजिए, शल्य निकालना, तो वहां पे जाके आप खोद दीजिए, वहां से शल्य निकाला जाता है, ठीक है, कैसे पता चल गया उनको कि वहां पे शल्य है, इट इज लाइक अ एनर्जी प्रॉपरली दे आर गोइंग टू यूज, ओके, कैसे यूज किया उन्होंने, क्या ट्रिक यूज किया, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द वास्तुशास्त्र, इट इज अ सिंपल ट्रिक, इट इज अ मेंशन इन द वास्तुशास्त्र कि आप कौन सी ओके। ट्रिक से कैसे शल्य निकाल सकते हो, ठीक है, जी सर। है ना, तो ये ठीक है शैली की सर। पद्धति दी गई है उसके अंदर वास्तुशास्त्र अच्छा। में, ये तो हम जी तो। समझेंगे, ठीक है, हम हम्म। समझेंगे क्योंकि ये वैदिक है, तो हम उसको जी। वास्तुशास्त्र के सारे टेक्स्ट में दिया है, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट कि सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं ना, इट इज इन द वास्तुशास्त्र टेक्स्ट, जो आप पुराने टेक्स्ट लोगे उसके ग्रंथों के अंदर ऑलरेडी मेंशन है, इट इज अ मेंशन, when you are going to follow like a mayam matam, when you are going to follow like a विश्वकर्मा प्रकाश, ठीक है, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, सब में बताया है, ठीक है, बट प्रक्रिया कैसे करनी है, ओके, वो तो सिद्धांत हमको पता होना चाहिए, वो हम बताते हैं बिल्कुल कि सर। भाई ये प्रक्रिया है, ऐसे करना है आपको, ऐसे फॉलो करना है, और ये तरीका है आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, हाँ जी। जी। वेलकम। जी पुनीत जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
Yes, sir. Good evening, sir. हाँ जी, नमस्कार सर, नमस्कार जी। My question is, sir, like as you have explained, like Dr. Saab, regarding uh, direction of puja stan, like from north to east, right? हम्म So except like southwest, sir, what else zones are like there where a person can, let's say a person is not able to like keep mandir from north to east, and what will be the impact or negative impact if they keep like on the other like zones except north, from north to east and except southwest. ओके। नाउ देखिए, अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित है शास्त्रों में, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, मास्टर्स में स्टडी करेंगे कौन कौन से देवता कहाँ कहाँ पे विराजमान होते हैं, ठीक है। परंतु जैसे आपने जो आइडल है, जैसे शिव हैं, तो शिव को आपने स्थापित, जैसे शिव परिवार हो गया, शिव हो गए, ठीक है, तो उनके परिवार को आपने किसी और जगह पे स्थापित कर दिया, ठीक है, तो उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा या उस घर की एनर्जी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। नाउ रही बात कि आइडली जो हमने जो सिचुएशन सिलेक्ट की, हमने नॉर्थ ईस्ट लिया, ईस्ट लिया और नॉर्थ लिया, हमने तीन ही पोजीशन ली। वी आर नॉट गोइंग टू टेक नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक नहीं ले रहे हम लोग, हम सिर्फ दो तीन पोजीशन लेते हैं, जिसमें पदविन्यास में वी आर गोइंग टू कंसीडर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये आइडल पोजीशंस ली, ठीक है। अच्छा, ये आइडल पोजीशंस किसके लिए? रेसिडेंस के लिए। अब यहाँ पे भी समझिएगा, किसके लिए लिया? रेसिडेंस के लिए। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक अ आउटर साइड ऑफ द टाउन टेम्पल्स, ठीक है, जो आउटसाइड टेम्पल्स होते हैं, क्योंकि आउटसाइड टेम्पल तो साउथ में भी होते हैं, कई बार वेस्ट में भी होते हैं, ठीक है, ईस्ट में भी होते हैं, ठीक है। सो व्हाई दे आर गोइंग टू क्रिएट इन दैट, वो तो अलग रीजन है उनका क्रिएट करने, क्योंकि वो देवताओं के अकॉर्डिंग दे आर गोइंग टू क्रिएट, ठीक है। नाउ अब आइडली यहाँ पर क्या होता है, जब वास्तु मंडला हम देखते हैं तो वहां के जो लक्षण है, हर देवता का अपना एक लक्षण है, ठीक है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप वहां पर ले जाके टेम्पल स्थापित करते हो, ठीक है। नाउ दूसरा, आपका जो चित्त है वो एकाग्र नहीं होगा अगर वो आइडल पोजीशन में नहीं है देवता, ठीक है, तो आपका चित्त एकाग्र नहीं होगा, चित्त एकाग्र नहीं तो वैसा फल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अब आइडली तो हम लोग जो जो लक्षण होंगे वो तो बहुत डीप में है, ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे उसको। Right. And sir, I have also seen like few of the temples in my city, like where उन्होंने शिवलिंग जो है साउथ वेस्ट में स्थापित किया हुआ है साउथ मंदिर में, किसने? आपके लाइक घर साउथ घर में? साइड। घर नहीं के नहीं, मंदिर? नॉट नॉट एट माय होम, आउटसाइड जो मंदिर है, जैसे जैसे आउटसाइड हम के, मंदिर में आउटसाइड के जो मंदिर हैं उनकी बनाने की प्रथा और उनके बनाने का निर्माण की क्रिया, ठीक है, वो अलग है पूरी की पूरी, वो एक अलग पैटर्न है पूरा का पूरा। right. All right, हम्म, sir. Thank you very much. Your sessions are always very informative and excellent, sir. Thank you very much. thank you. वेलकम सर, वेलकम। जी मैम, स्वाति मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर नमस्ते। सर एक्चुअली मुझे ये वास्तु का इनिशियली कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर भी ये मास्टर्स करना ठीक है? Ma'am, initially you can go with the diploma or the PG diploma course in our college. Then you can or not like pick up the master's course, right? ओके, मतलब विदाउट बेसिक नॉलेज ये मास्टर्स करने में मतलब यूजफुल है? बिल्कुल मैम। And for more details, you can connect with the relationship manager or the course coordinator. There the syllabus of the like diploma and PG diploma will be shared to you. You can go through that हाँ, once. शेड ओके, नो प्रॉब्लम। Right. Thank you. Yes, sir. Please unmute yourself. नमस्कार। Namaste. सर Yes. आपका पुराना स्टूडेंट हूँ। थैंक यू सो मच इतने सारे पढ़ाने के लिए। एडमिशन ले चुका हूँ ऑलरेडी। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन नहीं है, रिक्वेस्ट है सर से कि सर जब आप, जैसे आपने बोला कि टेम्पल आर्किटेक्चर एक मेजर पार्ट होता है, तो उसके लिए जो अलग सा पदमंडला यूज होता है, तो क्या हम डिफरेंट डिफरेंट पदमंडला के ऊपर काम करेंगे सर? इस पे अगर आपके पास टाइम हुआ तो थोड़ा सा इस पे भी फोकस कीजिएगा।
ओके, देखिए मैं आपको मंदिर, आइडल जो मंदिर होते हैं या आउटर साइड ऑफ जो मंदिर होते हैं, उनका जो बेसिक आइडिया है वो आपको पूरा दे दूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कैसे पद मंडलास को यूज किया जाता है और किस तरीके से वर्क किया जाता है। जो आर्किटेक्चर ऑफ द जो इंडियन टेम्पल्स है उनको वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है, उसको थोड़ा हम डीपली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो वो आपको आए पूरा पता चल जाएगा। फिर थोड़ा सा रेफरेंस आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू, तो आप उसको थोड़ा स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन डू वेरी वेल। एंड सर एक और छोटा सा मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं क्वेरीज था, कि जब हम पदमंडलास को कम करते 81 से नीचे जाता है, तो क्या कहीं पे भी ऐसा है कि कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि 64 पदमंडलास जो टेम्पल्स के लिए यूज होता है इन जनरल, या फिर सिटीज के लिए होता है, तो उसमें कुछ देवतास या फिर कुछ असुर पद लुप्त हो जाते हैं या नहीं मिस ऐसा, हो जाते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। देवता कई बार क्या होता है, जैसे शेयरिंग होती है, ठीक है, जैसे हम 81 पद देवता कंसीडर करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एक ही दो पदों पर एक ही देवता विराजमान होते हैं, ठीक है, हाँ। और इसमें क्या होता है कि एक पद पर एक ही देवता, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे शेयरिंग कम हो जाती है, ठीक है, और वहां पर शेयरिंग बढ़ जाती है, तो इस तरीके से उसको कंसीडर किया गया है। रेसिडेंस के तो लिए फिर आइडिया थोड़ा अलग चूज किया गया है। अच्छा, लेकिन सर जो जैसे 2x2 3x3 या 4x4 इस टाइप के पदमंडलास में हम्म हमारा जो खाना है वो बहुत कम होता है, तो क्या वो शेयरिंग हो जाता है फिर उस टाइम में? उसमें शेयरिंग होता है, उसमें जैसे आप 1x1 देखते हैं, फिर उसके बाद आपका 3x3 आता है, ठीक है, तो ये जो मंडला पद्धति आती है इसके अंदर शेयरिंग होता है। इसके अंदर देवता जैसे प्रमुख को ही माना जाता है, बाकियों को निग्लेक्ट कर दिया जाता है, परंतु देखा जाए तो 45 देवी देवता तो विराजमान होते ही हैं। ओके। और सर मेरा लास्ट है कि एक चीज है, आपने जो जितना सिखाया था हम लोगों को पीजी डिप्लोमा में, उसके ऊपर जब थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ने गया तो देखा कि सम्रांगन सूत्रधार या फिर मायामतम या फिर विश्वकर्मा प्रकाश में जो 81 पदमंडलास में कुछ देवता, खास करके पृथ्वीधर, आर्यम्मा, विवासवान, मित्रा, और उधर से भल्लाट, सोमा, शर्प, या फिर सेम डायरेक्शन नॉर्थ जैसे हो गए ईस्ट में, इसमें जब हम मिडिल वाला जो मनुष्य विधि है उसमें हम्म कहीं पे दिखाया जा रहा है कि आर्यम्मा इस साइड में आ रहा है, कहीं पे दिखा रहा है नहीं, वो दो घर ले वो जो डिफरेंशिएशन है, तो क्या वो हम मास्टर्स में, अभी नहीं सर, मास्टर्स में थोड़ा इसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करेंगे सर, अगर आपका टाइम मैं हो? एक चीज आपको जरूर बता, जैसे आप अलग अलग ग्रंथ देखेंगे ना तो उन ग्रंथ में थोड़ा सा विरोधाभास जरूर है। क्यों है? क्योंकि अलग अलग टाइम पे जब देखो ग्रंथ लिखे जाते हैं, जैसे ग्रंथ शायद मैं तो यही कहूंगा कि एक ह्यूमन ने ही लिखे हैं ग्रंथ, और धीरे धीरे उन्होंने रिसर्च करके ही लिखा है ग्रंथ। तो जब कोई ग्रंथ लिखे जाते हैं तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने ग्रंथ को एक नॉलेज के अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रंथ लिखा, ठीक है, उसके बाद जो चेंजेस आया तो चेंजेस आए हैं। क्योंकि आप ऐसे नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से दैट कि ग्रंथ में सब सेम टू सेम है, सब ग्रंथ में नहीं है। आप मयमतम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे विश्वकर्मा प्रकाश जाएंगे तो अलग देखना, सम्रांगण सूत्रधार देखेंगे तो उसमें तो देवता भी कई बार मतलब आगे पीछे हैं आपके, और देवताओं के नाम भी अलग अलग दिए आगे गए हैं। पीछे है ये हाँ, सर। तो ये है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं है, है, क्योंकि वहां पर उन्होंने उस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है और यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। परंतु वी आर गोइंग टू आइडली जिसको हम फॉलो करते हैं वो पूरा का पूरा वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, उसको ही हाँ, हम बस देखते सर हैं। वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपको कि आपका टाइम अगर मिले तो इन, क्योंकि हम लोग अभी मास्टर कर रहे हैं, इसके बाद डेफिनेटली वी आर गोइंग फॉर द पीएचडी वन, तो हम लोग को इसमें अगर थोड़ा सा जो विरोधाभास है क्यों है, किस रीजन से है, जैसा आप हमेशा पढ़ाते हो इन डिटेल्स में, एक्चुअल लॉजिक में, तो थोड़ा सा इस पे भी अगर आपको टाइम मिले तो एक क्लास इसके ऊपर भी थोड़ा सा दीजिएगा सर, थोड़ा सा आपका टाइम। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। प्रणाम सर, थैंक यू, हाँ जी, हाँ जी। लॉट्स ऑफ इट। Thank you. I request all to have the quick questions. Yes, ma'am. Sudeshna ma'am. हेलो हेलो सर, राधे राधे सर। Radhe Radhe. मेरा दो क्वेश्चन है, शास्त्री जी से दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन सर से है। एक्चुअली मुझे अभी वास्तुशास्त्र का मतलब जो ग्रुप में आया उसको देख के मैंने ज्वाइन किया, पर मेरा कोई नॉलेज नहीं है। तो इसलिए मुझे सर से पूछना है कि अगर पहले मुझे क्या डिप्लोमा करके मैं डायरेक्ट एमए एनरोल कर सकती हूँ या पीजी डिप्लोमा करके फिर मुझे एनरोल करना पड़ेगा?
Ma'am, you can go for the PG diploma course, then you can go for the master's program. ठीक है ओके सर, और अगर मेरा कहीं से भी कुछ सर्टिफिकेट वास्तु रिलेटेड है क्या, वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा क्या सर? you can share it to the course coordinator or the relationship manager. ठीक है एंड सर वन एक और भी क्वेश्चन है कि ये आपसे पहले भी मतलब पूछना था पर पूछे नहीं पाए कि जो पीएचडी जो कोर्सेस है यहाँ के, तो जैसे कि ये तो कोई यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है बट पीएचडी है, तो सर इससे पीएचडी करने से हम लोगों को मतलब बेनिफिट्स और मतलब बाद में इक्विवेलेंट होगा या नहीं, और डॉक्टर जो हम लोगों को जो डिग्री मिलता है वो क्या मिलेगा सर? Certainly, ma'am. We are affiliated to the IMA International Open University of Florida, USA से. You can go through our website. ठीक है मैम. और हमारा नीति आयोग से भी हमारा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, right? And you will be getting the like university certification for your like PhD courses, right, ma'am? और आपको कॉलेज की Okay. सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आपको. And nothing to worry. All the certification programs in our college are globally it is valid. And you can like definitely use it for the consultation, right? For the Okay. government like post for teaching in the government like colleges, it is not valid because this is the occult science field. ठीक है मैम, वैदिक के courses है where you can definitely use it for the consultation or to support the general society, right? ओके, और सर से मेरा एक क्वेश्चन है, सर ने अभी बोला कि मंदिर लेके, तो मुझे दूसरा कुछ पूछना है क्योंकि मेरा जो मैं जो घर में रहती हूँ वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, दोनों वॉशरूम ही नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में है, तो इसके कारण मेरा बहुत ऑब्स्टेकल्स आता है, पर मैंने देखा सर ने बोला कि रेमेडीज होता है, क्या नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम रहने से रेमेडीज काम करता है या नहीं करता है, ये सर से मुझे ये पूछना है क्वेरी के लिए। मतलब रेमेडी क्या हर चीज का होता है या नहीं, मतलब कुछ कुछ का मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट बाथरूम का रेमेडीज नहीं होता है, इसलिए मुझे सर से ये पूछना है कि रेमेडी से हम लोग कुछ सब कुछ क्लियर कर सकते हैं या क्या, मतलब कुछ चीज का रेमेडीज नहीं होता है? ओके नाउ देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, रेमेडी का अर्थ होता है कि जैसे एक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूं, आपको अगर कोई बीमारी है, इफ यू हैव लाइक ए डायबिटीज, ओके, तो डायबिटीज का कोई इलाज तो है नहीं पर्टिकुलरली, आपको मेडिसिन लेना होगा, ठीक है, तो मेडिसिन लेते रहने का, ठीक है, तो तब तक वो कंट्रोल में रहेगा, या फिर आप अपने प्रिकॉशंस लें तो कंट्रोल में रहता है, लाइक दिस। तो हर चीज का रेमेडी नहीं होता, ठीक है, बट उसका प्रिकॉशंस होता है। प्रिकॉशंस मतलब उसका अवरोध किया जा सकता है, उसकी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको रोका जा सकता है, उसको रोकने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को सपोज एक टाइम पीरियड तक हम रोक सकते हैं, उसके बाद उसको रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जिसका रेमेडी लोग कहते हैं नहीं होता, बट उसका रेमेडी कैसे होता है कि आपने आज अभी किया, ठीक है, उसके बाद में आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर यू हैव टू वापस आपको वो चेंज करके वापस से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर प्रभाव होता है वो बहुत ही नेगेटिव होता है, इसलिए उसका प्रभाव खत्म हो जाता है बहुत जल्दी, मतलब रिवर्स हो जाता है, इसलिए उसके लिए आपको रिवर्स करना पड़ता है, अगेन एंड अगेन वो चीज करनी पड़ती है। सेम तरीका जैसे आप कोई जेमस्टोन पहनते हो, तो जेमस्टोन का अपना एक लाइफ साइकिल है, 4 साल 2.5 साल, ठीक है, तो उसका लाइफ साइकिल है। जैसे हीरा तो चलो सदा के लिए वी कैन से, बट जाए अदर जो जेम्स हैं उनका अपना एक लाइफ लाइन है, ठीक है, तो वो लाइफ लाइन के बाद आपको उसको चेंज करना पड़ता है क्योंकि उसका भी एनर्जी कम होता है। तो लाइक दिस कि हम जब रेमेडीज करते हैं तो उसमें ऐसे तत्वों को और ऐसी चीजों का यूज करते हैं जिसमें एक लिमिट तक आपको फायदा मिलता है, फिर उसके बाद आपको वापस से उसको रिवाइज करना पड़ता है। एक्चुअली सर इतना सारा सब कुछ अभी फेसबुक एंड यूट्यूब में रील्स आता है, सब देख के हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो जो मैम ने बोली कि महावास्तु के बारे में क्लियर किया, मतलब सर मतलब हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, अभी तो सब कुछ जो आ रहा है इतना ज्यादा आता है तो इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैम डोंट वरी मैम, लाइक इसीलिए तो हमने इधर कोर्स बनाया, यू कैन ज्वाइन द कोर्स जहाँ रेमेडी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है मैम, यू कैन लर्न द रेमेडीज एज वेल, ठीक है मैम। Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Right, so we are running short of the time. Kindly have quick questions. Please unmute yourself, ma'am. Galia, yes, ma'am. Namaste. I have a question. This course
Do you have this course in English or just in Hindi? We have in like both languages, ma'am. You can enroll in the particular batch, and also the like faculty will be like teaching you in English as well. So you can feel free to ask your questions. No issues. And modules in the English also, on the both languages? The Yes, modules. yes, we do provide the study material in English, ma'am. Yeah, and but this is will one group for both languages together, Hindi and English. Certainly, ma'am. We have the mix of Hindi and English in the same batch. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Namaste. जी आरजी नायक जी, please unmute yourself. हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर मेरा 2 सवाल थे। जी सर 1000 से 1024 पद मंडल का वास्तु होता है, तो पूरे पे एक का भी और 1024 पूरे का भी चर्चा किया जाएगा कि खाली 81 और 64 पदों पे? 81 और 64 पदों पे वी आर गोइंग टू फोकस, ओके। एंड जो अदर रेसिडेंशियल 1, कमर्शियल, 4, 9 इन पे सर नहीं होता क्या? देखिए हमारे जो पद मंडल हैं उसके अंदर जो सिलेबस में दिया गया है, क्योंकि हम लोग पीजीडीआईबी जो हमने किया है उसके अंदर तो काफी पद मंडल हमने स्टडी किए हैं, ठीक है, जो ओवर हमने देखा है। पर जो मास्टर्स के अंदर है जिसमें 64 और आपके 81 पद मंडल, क्योंकि कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर इसमें ज्यादा फोकस किया गया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसलिए हम उन्हीं के ऊपर फोकस करते हुए जो रिलेवेंट है, जो ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है और मार्केट में एक स्टूडेंट या फिर एक व्यक्ति जो यूज कर सकता है सबसे ज्यादा और काम में ले सकता है, तो उसी के ऊपर चर्चा अधिक है। फिर आप रिसर्च में जा सकते हैं, इफ यू वांट टू गो इन द लाइक अ पीएचडी एंड यू कैन टेक लाइक अदर पद मंडलास, यू कैन टेक इन द रिसर्च। सर पीएचडी में 1 से लेकर 1024 पूरे पद मंडल पे चर्चा किया जाएगा? वो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो रिसर्च आपको करना होता है, ठीक है, हम तो गाइड होते हम हैं। तो रिसर्च करेंगे सर, लेकिन गाइडेंस तो आपकी चाहिए ना सर। हाँ, गाइड हम कर सकते हैं आपको। क्योंकि अब जैसे एक पुरुष मंडल का क्या यूज है, 4 पुरुष मंडल का क्या यूज है, 9 पुरुष मंडल का क्या यूज है, वो तो कम से कम समझ आए किस टाइप से डिटेल्स उसके कुछ, वो बिल्कुल सब सर, सर गाइडेंस मिल आपका जाएगा। पीएचडी में बताया जाएगा क्या? सर आपको गाइडेंस मिल जाएगा अगर आपका रिसर्च का टॉपिक ये होता है तो, ठीक है ना सर, नथिंग टू वरी दैट। एक और क्वेश्चन था सर इसके अलावा। जी नॉर्थ ईस्ट में जो मंदिर जो रहता है, मंदिर के ऊपर जो ट्रेंगल रहता है वो नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं। हाँ, नहीं होना क्यों चाहिए। नहीं होना चाहिए? उसका क्या उल्लेख है मलाई किसी चाप, ग्रंथ में या किसी बुक में? कौन सी चाप मंगा रहे? ठीक है, अच्छा, एक मिनट। देखिए आपका जो ऊपर जो ट्रायंगल बना होता है वो ट्रायंगल हम नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि हम रेसिडेंस में टेम्पल बना रहे हैं। रेसिडेंस का टेम्पल का एक सिद्धांत अलग है, ठीक है, जो मैंने आपको बेसिक आइडिया हिस्ट्री भी बताया, ठीक है। अच्छा, टाउन टेम्पल्स जो होते हैं वहां पर बनाया जाता है और उसको हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर जो स्टूडेंट पीजीडीआईबी में भी रहे होंगे तो भी मैंने एक आइडिया उनको दिया है ऑलरेडी, और इसके अंदर तो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कैसे होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सर इसका किसी भी ग्रंथ या बुक में उल्लेख है क्या, किसी ग्रंथ में? नहीं, समांगण सूत्रकार में, हाँ, मतलब ये भी इसमें मैं किसी बता में? देता हूँ। हाँ, आपको रेसिडेंशियल जो मंदिर होते हैं उसका उल्लेख ग्रंथों में नहीं है। अच्छा। उसका उल्लेख आपको ग्रंथों में नहीं मिलेगा। मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि मैंने आपको इसका हिस्ट्री भी बताया कि 11वीं सेंचुरी के बाद आपको आइडियली ये चीज देखने को मिली कि लोगों ने घरों में मंदिर बनाना स्टार्ट किया। उसके पीछे का रीजन क्या था वो भी हमने चर्चा की। तो ये चीज हमको जो ग्रंथ हैं, जो हमारे जैसे साक्षात जिनको हम वास्तु ग्रंथ कहते हैं, उन ग्रंथों में पर्टिकुलरली उसमें चर्चा नहीं की गई। हाँ, मंदिरों की है, देवालयों की है, देवस्थानम की है, ठीक है, पर उनका स्पेशली चर्चा नहीं है क्योंकि वैसा होता नहीं था पहले, इसलिए। ओके, हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, thank you sir, thank you so much. Right, so last 5 minutes, so we'll have the quick questions please. जी सौरभ जी, प्लीज अनम्यूट yourself. हेलो सर, जी सर, नमस्ते। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक सवाल था, छोटा सा। एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन हुआ था, मुझे मालूम नहीं पड़ा क्लासेस के बारे में ऐसा है करके।
तो अभी जैसे मंदिर का टॉपिक चल रहा है सर, तो मंदिर के टॉपिक में मेरा सवाल ये था कि अपन मंदिर में अपन पूजा करते समय अपना मुख किस तरफ में रखें, मतलब यानी भगवान किस तरफ में विराजित अपन करें। तो मुझे ये जानना था सर, जैसे पूर्व या उत्तर या पश्चिम दक्षिण, कौन सी दिशा में अपना मुख हो पूजा करते हाँ, समय। आपका मुख ईस्ट में हो सकता है, ईस्ट उत्तम है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, फिर नॉर्थ में हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास 3 मुख की कंडीशन है। ईस्ट सबसे जी उत्तम है, ठीक है, जिसको हम सूर्य का पद कहते हैं, उस तरफ आपका मुख्य रहे तो अति उत्तम है। फिर जी उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट आता है, ठीक है, तो उसमें भी आप अपना मुख रख सकते हैं। जब आपको ऐसी कोई कंडीशन ना मिलती हो तब आप जाके लास्ट में नॉर्थ में अपना मुख रख सकते हैं, परंतु ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट सबसे उत्तम है। सर, मंदिर की प्लेसमेंट अगर नॉर्थ ईस्ट आ रही है, हम्म पर अपना फेस नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट पे नहीं आ पा रहा है, तो नॉर्थ में अगर अपन उसका फेस करें तो वो चलता है। किसका फेस करे तो अपना फेस? अपना मंदिर जो है, मंदिर हाँ नॉर्थ ईस्ट पे प्लेसमेंट दे रहा है घर के, हाँ हाँ है ना, हाँ। पर जो उसका जो बन रहा है मंदिर, वो इस हिसाब से बन रहा है कि उसका जो अपना मुख रहेगा पूजा करते समय वो उत्तर की तरफ में ही रहेगा। दूसरी जगह का ऑप्शन नहीं है सर, ना अपन पूर्व की तरफ घुमा सकते हैं क्योंकि उधर दरवाजा आ जाएगा, या ना पश्चिम की तरफ कर सकते हैं ना दक्षिण की तरफ में। तो क्या वो हम्म। चलेगा वैसा। पर ईस्ट में तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में मंदिर आता है तो ईस्ट में फेस क्यों नहीं मिलेगा आपको? सर एक्चुअली में सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कई जगह में कि जैसे चौड़ाई नहीं है किसी के घर की, हम्म। तो नॉर्थ ईस्ट के तरफ में अपन मंदिर तो निकाल पा रहे हैं पर ईस्ट की तरफ में उसमें फेसिंग ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये कंफ्यूज हो भगवान रहे ऐसे। हैं। जी देखो, आप जब नॉर्थ ईस्ट में आइडल रखोगे ना, जब आपका जी आइडल या मंदिर रहेगा तो आपके पास दिशाएं 2 मिलती है, जो 3 दिशाएं तो ओपन रहती है आपके पास में। एक रहती है ईस्ट, ओपन रहता है, क्योंकि जो देवता होते हैं जो विराजमान होते हैं तो या तो जी नॉर्थ ईस्ट में विराजमान होंगे। ठीक है, तो आप आइडली अपना फेस ईस्ट की तरफ रख सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास तो सराउंडिंग स्पेस खाली रहता है। ठीक है, सर, तो वही दिक्कत है। वो यानी मैं खुद क्या ऐसी सिचुएशन में सिचुएशन फंसा आपकी हूँ। यहाँ पर ऐसी आ गई कि मतलब आपको नहीं मिल पा रहा है, वो अलग बात है। जी, दूसरा यू ओनली हैव। ना नॉर्थ है, एक नॉर्थ ऐसी दीवार है जो सिर्फ खाली है जहाँ पे अपन मंदिर को प्लेसमेंट कर सकते हैं, नॉर्थ की दीवार पे, पर उसका यानी पोजीशन पूरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ में है। हाँ, तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, आप नॉर्थ को भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसा तो कोई कर है सकते नहीं। हैं ना। हाँ, कर ओके। सकते हैं, पर आपके पास आइडल पोजीशन हमेशा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को रखें, फिर लास्ट में जी यू हैव टू चूज ओनली द नॉर्थ। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। जी जयश्री मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर, हम वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी, ये जो कॉन्सेप्ट है एस्ट्रो वास्तु, इसमें क्या पढ़ाने वाले हैं सर? देखिए, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु शास्त्र में एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा पार्ट आता ही है अपने आप में। आयुर्वेद का आता है, एस्ट्रोलॉजी का आता है, योग का आता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, अपने आप में बहुत कुछ है उसके अंदर। तो ये क्या होता है, जस्ट ए सब्जेक्ट, इट इज नॉट अ सेपरेट पार्ट, इट इज लाइक वी कैन से दैट इट इज अ सपोर्टिंग पार्ट। एस्ट्रोलॉजी इट इज अ सपोर्टिंग पार्ट टू द वास्तु, जो एक सपोर्टिंग एलिमेंट है, ठीक है, पार्ट है। उसी तरीके से योग भी अपने आप में योग शास्त्र है तो वो भी अपना एक पार्ट है। ठीक है, शिल्प शास्त्र है तो वो भी अपना एक पार्ट है। ठीक है, फिर अगर आप उसी के साथ में दूसरे चीजों को वेदों को ले जाएं तो वो भी अपना एक पार्ट है। ठीक है, आयुर्वेद भी पार्ट है। तो इस तरीके से मतलब इट इज लाइक यू कैन से दैट कि जब आप कोई चीज पढ़ते हो, सपोज इफ यू वांट टू गो टू स्टडी अबाउट लाइक केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के साथ में उसके कुछ अदर पार्टिकल्स भी आएंगे जो फिजिक्स में भी यूज होते होंगे, कुछ मैथमेटिक्स के आएंगे, तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री भी तो वहां पे आई ना साथ में। तो लाइक दिस कि मतलब ये चीज सब पार्ट होते हैं और ये साथ में आता है उसका, और सभी जगह होता है, ये होता ही है उसके साथ। ओके, और सर अयादी वास्तु या अयादी सूत्र जो है ये भी इंक्लूड है क्या इसमें सर? हाँ, इंक्लूड है, इंक्लूड है। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। जी विक्रम जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सर। शास्त्री सर और डॉक्टर साहब दोनों से क्वेश्चन है। शास्त्री सर, ये ड्यूरेशन कितना है कोर्स का? जैसे 18 जुलाई से शुरू होगा और हर फ्राइडे रहेगा, तो जी कितने क्लासेस होंगे, ड्यूरेशन कितना है इसका?
Sir, the like classes will be around 32 to 35 classes ओके सर, for the completion of syllabus. ठीक है ना सर? ओके सर, तकरीबन like 4 महीना मान लीजिए आप, हफ्ते में जी like 2 जी classes जी। फ्राइडे एंड सैटरडे। और इन साइड बाय साइड हम वीडियोस से भी उसको रिवीजन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। है और ना? डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन था सर, जैसे बने बनाए भवन में या फ्लैट में कुछ मतलब बहुत चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं होती है, तो आजकल सुनते हैं जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि ड्रिल करके डिव्स और स्टड्स और स्प्रिंग्स और ये सब लगा के हम कोई देवता फील्ड को एनर्जाइज करेंगे तो उससे करेक्शन हो जाएगा। इसमें ये गिमिक्स है या कोई सत्य है, या हम भी इसको पढ़ने वाले हैं? देखिए, कुछ जो चीजें हैं उनको स्थापना करवाना ये तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये शास्त्रों में ही है कि कैसे कैसे स्थापना करवाई जाती है। ठीक है, तो वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वो डोंट वरी। ठीक है, और बाकी जो चीजें जो लोग करवाते हैं, ठीक है, वो अलग चीज है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो अपना उनका तरीका है। बट सिंपल जो शास्त्रों में जितना भी पार्ट आता है, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, जो जो चीजें स्थापत्य वेद कहता है, जो हमारा शास्त्र कहता है, वो सारी चीजें हम लोग बताते हैं कि ये चीजें रखनी चाहिए, और ये उत्तम रहती है और एनर्जेटिक करती है पर्टिकुलर स्पेस को भी। मतलब हमारे जो दायरे में ये डिव स्टड स्प्रिंग्स ये सब नहीं है, हमारे जो विश्वकर्मा नहीं शास्त्र जो है। नहीं नहीं, ऐसे वो मतलब स्प्रिंग्स वगैरह वी आर नॉट गोइंग टू यूज, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे में नहीं है। ठीक और है, एक वी आर मंजूषा गोइंग विद द मंजूषा की टेक्निकली डब्बी और कहते हैं, शास्त्रों के साथ। जैसे कहते हैं मंजूषा की डब्बी होती है, उसमें 27 रत्न होते हैं, ऐसा ये सब कुछ नहीं होता? ना ना ना, रत्न इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, बिकॉज रत्न तो स्थापित करे जाते हैं और ये शास्त्रों में है। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ, वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे स्थापित की करनी चाहिए, कैसे उसको चार्ज किया जा सकता है उस स्पेस को। और अच्छा, सपोज लाइक दैट कि मतलब किसी का मतलब कुंडली में कोई दोष है, ठीक है, तो उसके कारण मतलब उसको किसी पर्टिकुलर ग्रह से प्रॉब्लम है, तो यू कैन चार्ज मतलब पर्टिकुलर स्पेस, तो आप किसी स्पेस को चार्ज कर सकते हैं किसी रत्न से। थैंक यू जी। ओके जी, अच्छा। Thank you sir, thank you so much. Yes sir, please unmute yourself. Hello, sir. Good morning, good evening, everyone. Thank you very much for this wonderful session. I hope I'm audible. यस यस। Yeah. So, sir, मेरा अभी सब लोग का जो सेशंस हो रहे थे या सब लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मेरे आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो क्वेरीज को तो ये मिला, आंसर्स मिला। सर, हम लोग मर्म स्थान पे भी बात करेंगे क्या इसमें? Yes, definitely. We are going to तो see like Marmastan points, everything. Yeah, definitely. तो मर्म स्थान पे जब भी हम लोग बात करेंगे या फिर ऐसा कुछ होगा, तो हम लोग सिर्फ लेक्चरल रहेंगे या प्रैक्टिकली भी कुछ ऐसा? नहीं, we are going to understand on the like a board. हम proper draw करके understand करेंगे. We are going to take like a example. हम example लेंगे. मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ नहीं जनरली। मतलब सर, स्टूडेंट हाँ के साथ 1 to 1, सपोज स्टूडेंट्स मिले हैं, हम लोग 10 है या 15 लोग का ग्रुप है, तो हम लोग अपना भी एक एक प्लान लेके आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे, या फिर ऐसा कुछ प्रैक्टिकल होगा, या it is very लेक्चरली जो difficult. अवेलेबल है सिलेबस में Just वैसे a वैसे? minute. Just a minute. It is a very difficult because of कि like 50 60 students होते हैं, तो it is a very difficult to one discuss. Yeah, but मैं assignments देता हूँ, ठीक है, तो जो असाइनमेंट दूंगा तो आप वो असाइनमेंट अपलोड करेंगे, उसके रिव्यूज और पर्टिकुलरली स्टूडेंट का चेक करके फिर उसको दिया जाता है, सो डोंट वरी। अच्छा, उसके ऊपर डिस्कशंस होगा, जो भी असाइनमेंट दिए वो प्रॉपर है या नहीं है, या उसके ऊपर क्या? हाँ, उसके ऊपर तो जैसे मैंने असाइनमेंट आपको दिया करने के लिए, तो वो असाइनमेंट आपको मिला, आपने उसको किया, करेक्ट नहीं किया, तो आई विल मतलब मैं उसमें करेक्शन बताऊंगा कि ये गलत है आपका, इसको ठीक करो। ठीक है, एंड वी विल डिस्कस इन द क्लास, वो एक पर्टिकुलर चीज पे हम डिस्कस कर सकते हैं। पर इंडिविजुअल इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कि एक एक स्टूडेंट का अपना एक एक लेके आए हैं और इंडिविजुअल डिस्कस। उसमें तो क्या होता है, स्टूडेंट गोइंग टू टेक लाइक दियर प्रोजेक्ट एंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड लाइक सर ये है, ये बता दो, लाइक दिस। हाँ, तो मतलब प्रोजेक्ट असाइनमेंट के जैसा होगा टास्क। हाँ, वैसा होगा। और ये जैसे एस्ट्रोलॉजी के आपने जैसे बोला कि हम लोग को वो कुंडली देखना पड़ता है और फिर वो स्पेस को हम लोग एनर्जी देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी विक्रम सर बात कर रहे थे, तो सर एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो मुझे कुछ कुछ भी नहीं पता, तो No, no. आर वी Generally, गोइंग like टू लर्न सम बेसिक you have अबाउट a दैट? like कुंडली. Suppose someone have a कुंडली, ठीक है, तो उसको अपने ग्रह नक्षत्र पता होते हैं,
ठीक है। Right. जैसे आपको अपनी राशि पता होगी, ग्रह पता होंगे, नक्षत्र पता होंगे, ठीक है, तो बेसिक आइडिया सबको होता है, ठीक है, इट इज लाइक अ बेसिक थिंग, ठीक है। अब उसके थ्रू वी कैन गो विद द लाइक अ पर्टिकुलर स्पेस, तो उस स्पेस को देखा जा सकता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब उसकी कुंडली को रिलेट करेंगे हम। हाँ, रिलेट करते हैं, वो तो आता ही है, वो तो वास्तुशास्त्र में आएगा ही आएगा। अगर आपने पीजी किया है तो उसमें भी था, और अभी जो आप मास्टर्स करेंगे उसमें भी आएगा। मास्टर्स के बाद हम लोग, क्योंकि मैं ये सब कर रहा था, मर्मस्थान ही मेरा एक वीक पॉइंट था कि मैंने एक्चुअली ट्रीटमेंट करने के लिए था। रेमेडीज के लिए भी हम लोग का एक अलग से सेशन होगा सर? या रेमेडीज तो मैं अलग से लास्ट में बताता हूँ, क्या कौन कौन सी रेमेडीज होती है, कैसे करना है पूरा। अच्छा, क्योंकि सर ट्रीटमेंट जब भी होता है ना, तो किसी किसी का रेमेडीज 6 महीने में होता है, किसी का 6 दिन में हो जाता है, किसी का 2 दिन में हो जाता है। मतलब मीन्स? अभी किसी को, अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि नॉर्थ ईस्ट, जैसे अभी किसी ने तो बोला था कि नॉर्थ ईस्ट की वॉल है, मंदिर यहाँ पे है, तो नॉर्थ ईस्ट में भगवान को रख दिया। अब वो बंदा फेस करेगा भगवान को, तो ही विल बी फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, राइट? फेस करेगा। फेस करेगा तो नॉर्थ ईस्ट में फेस होगा ना उसका। सेंटर से नॉर्थ ईस्ट इस तरफ है, हम्म। फेस करेगा तो उस तरफ जाएगा ना, वेस्ट तक या नॉर्थ ईस्ट तक ही रहेगा। नहीं नहीं, वो आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत सारी कंफ्यूज हो चीजें। गया, हाँ। हाँ, पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू हाँ वेरी जी, मच। हाँ जी, हाँ जी। So we'll take the Hi, good last evening. question of the day. Yeah, my just very small question. Yes, sir. Yes. I have some knowledge about Vastu, right? But I have not done PG course from your institute. I am planning to straight away enroll for. In fact, I have enrolled for masters now, right? Would I be able to cope up with the masters? When we say we'll be doing an in-depth study in the master course, right? I'm sure we will be covering the subjects which were there or topics which were there in the PG also. We'll be studying more in depth. That's what master is. And that is what my understanding is. I hope it won't be like that these topics were only covered in PG. Now we are not covering this topic in masters. For this, you'll have to refer to PG. I hope it won't be like that. Sir, My actually, understanding is that way. right, sir. Actually, the like PG syllabus is having the like in-depth like study in the master's level, right? In which we have few more like topics as well, which is included in the master's level, which is not there in PG, right? So it is a kind of the advanced like study in the like Vastu Shastra itself. So I would request you to connect with the relationship manager once and get the proper like guidance from them. And also you can also make a note of the office number so that you can connect with me. I'll also give you guidance on how to like proceed with the like particular enrollment process. Right, sir? Fine. Kindly Thank make you. a note of my number 70234 Okay. 19351. So this Right, is our Shastri ji. college. Yes, sir. Thank you. 19351. So this is our college office number. You can connect with this number for the guidance. Right, sir. I'll do that. I'll do that. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Yeah. Thank you, Professor. So it was a very like detailed like discussion regarding the topic and आपने बहुत like अच्छे से समझाया, बहुत पेशेंस से आपने सारे सवालों का जवाब दिया. And due to the time constraints, I request all the like viewers to like connect with your relationship manager for more details regarding the particular course and on the fee structure as well. And it was a like wonderful session with all your participation. And thank you so much. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. जय श्री कृष्ण, राधे Thank you, राधे, sir. Thank you. Radhe Thank you Radhe, very Jai much. Shri क्वेश्चन है मेरा Krishna to all. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर आपसे।